and this is a very important subject for all of us because it relates to our rather life in this country and the way we need to live and the way we need to contribute to the country's well-being. So it's very important for us to understand. One important thing which I would like to mention here is that quite often when we are talking about something which is very commonly, in use, like this term national integration about which we'll discuss today, we are generally of the view, or we generally assume that we all know this, what's new in this. It's so common, it's so general. Everybody uses the term and you frequently come across these terms. But the problem usually which confronts us is that whenever things are so very general, so very close to us, we assume that we know, but actually we don't know it in entirety. Usually our understanding of that term or that idea is not so complete as it should be, although we assume that we know it. And we frequently use the term also in our discussions, in our discourse, in our meetings, wherever we talk with others, we use the term very frequently without fully appreciating the import and the meaning of that term. So therefore, we decided to put this topic as one of the subjects of one of the interactions with you, so that we would be able to discuss it in detail and be able to all of us together will be able to appreciate actually what it does mean and what importance it holds for all of us. Now, this term national integration actually has two parts, national and integration. First, we'll try to unpack it theoretically, not in a very deep manner, but just to have a basic understanding of it. Those of you who are from social sciences would be very aware of this. It would sound very elementary to them, but for others, maybe it could enhance to their understanding. The first term is national. National is an extension of the term nation. National जो है वो nation से बना है. Nation जो main term है जहाँ से बात शुरू होती है, nation. Now, quite often, many of us, again here, use the term nation very casually, very loosely. And rather, we would often use the term nation interchangeably with state. अक्सर हम में से बहुत से लोग nation और state को एक ही सांस में बोलते हैं, या एक दूसरे की जगह बोलते हैं, या एक दूसरे की जगह उसको रिप्लेस करते हैं. कोई बात कर रहे हैं तो एक बार नेशन बोल दिया, एक बार स्टेट बोल दिया, as if both mean the same thing. So we quite often use these terms very loosely, very casually, thinking that they both mean the same thing. Actually, we all know, we are all academics, that no two terms are ever the same. कभी भी कोई दो terms, संदीप साहब अपना माइक ऑफ कर लें. हाँ, कभी भी दो टर्म्स जो हैं उनका मतलब कभी भी एक नहीं होता. हमको लगता है क्योंकि शायद हमें उनका सटल डिफरेंस पता नहीं होता, तो अक्सर हम कह देते हैं साहब इन दोनों चीजें एक ही हैं. हमें मालूम नहीं है, लेकिन एक नहीं है, दोनों में फर्क है. उसी तरह नेशन और स्टेट में बहुत ज्यादा फर्क है. बेसिक फर्क क्या है? नेशन जो है, रादर स्टेट पहले बताता हूँ. स्टेट इज ए पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, इट इज ए लीगल कॉन्सेप्ट. आप सबको अंदाजा है कि जब हम किसी टेरिटरी पे रह रहे होते हैं, जैसे हिंदुस्तान में हमारी एक टेरिटरी है, उस पर एक पॉपुलेशन है, हमारी एक गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट के पास सोवरेनिटी. ये सब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं कि ये चार एट्रीब्यूट्स होते हैं एक्चुअली: टेरिटरी, पॉपुलेशन, एंड गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी, और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, जैसे कोई स्टेट जिससे बनता है. तो स्टेट एक टेक्निकल लीगल चीज है. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि 1947 में 14 अगस्त तक हम स्टेट नहीं थे. हमारे पास सारी यही चीजें थी, हम सब लोग रह रहे थे, या हमारे पहले की जनरेशन के लोग रह रहे थे, हमारी जमीन थी, सब कुछ यहाँ यही था. लेकिन अंग्रेजों की हुकूमत थी. तो जब 15 अगस्त में एक डॉक्यूमेंट साइन हो गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिसको कहते हैं, द मोमेंट दैट डॉक्यूमेंट वाज साइंड, इंडिया बिकेम अ स्टेट. Because we got sovereignty, supreme power to decide our internal and external affairs as an independent country. तो क्या हुआ कि स्टेट जो है वो 1 मिनट में बन गया या कुछ सेकंड्स में बन गया. जैसे ही वो डॉक्यूमेंट साइन हुआ, आप स्टेट बन गए. तो स्टेट एक टेक्निकल लीगल चीज है. जैसे ही वो टेक्निकलिटी और लीगैलिटी फुलफिल होगी, स्टेट बन जाएगा. मतलब उसको बनाने में वक्त नहीं लगता, वो एक टेक्निकलिटी जो पूरी करनी. जैसे 14 अगस्त को एक दूसरा डॉक्यूमेंट साइन हुआ था, पाकिस्तान बन गया. 15 अगस्त को एक दूसरा डॉक्यूमेंट साइन हुआ, इंडिया बन गया.
ऐसे दुनिया में बहुत से स्टेट्स आप अखबार में पढ़ते हैं, न्यूज में देखते हैं, कल स्टेट नहीं था आज स्टेट बन गया. But nation is not like that. Nation is very different. Nation is not a historical or legal concept. Nation is state is a legal and technical concept. Nation is a historical and cultural concept. Nation जो है वो एक historical concept है, cultural concept है, और एक nation 1 साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल में भी नहीं बनता. It is formed in hundreds of years. So India as a nation has come into being after hundreds and thousands of years, of all of us living together. तो nation कैसे बनता है? जब हम सब इंडिया में हैं, we have been living together on this land for so long, for hundreds of years. And when we live on a certain land for hundreds of years, despite our differences, हमारे differences भी होंगे. Differences कैसे होंगे? There would be differences of religion, of caste, of region, of language, of even class, or there could be any other difference also. But despite those differences, we are living together for such a long time. So what happens? We share the same history. We share the same ups and downs, अच्छे दिन और बुरे दिन. अच्छे एक्सपीरियंसेस और खराब एक्सपीरियंस सब हमने साथ देखे हैं ना, for such a long period. So when a people means collectivity, that Indian people is today more than 135 crore people. So earlier there were less. So we have been living together on this land for such a long time, and by living together, by interacting with each other, by exchanging things with each other, we developed some kind of commonality, some kind of emotional links with each other, which is emotional, at the level of thinking, at the level of feeling, at the level of your ideas. We come close to each other. We start identifying with each other. So that thinking, that feeling, that emotional attachment we all feel with each other, that makes a nation. So nation is not something which you can touch with your hands. Nation is not something which you see with your eyes. It is there in our minds and hearts. We identify with each other, and by that identification, by that closeness, by that commonality, by that common sharing of history, we become a nation. तो नेशन जो है वो एक दिन में, एक साल में, 100 साल में नहीं बनता, सैकड़ों सालों में बनता है, जब लोग एक साथ रहकर इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से, और उनके अंदर वो एक लिंकेज डेवलप हो जाता है जो इमोशनल लेवल पर. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल, आई लिव इन यूपी, एंड सपोज दैट आई डोंट नो any other language except Hindi, which is the spoken language in UP, and I go to Kerala, for example, and my countryman in Kerala does not know any other language except Malayalam. So we can't talk to each other. हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक इमोशनल लिंकेज है which links me to him or him to me, that we are Indians. So that emotional linkage, that emotional connect which you can establish with anybody living on this land, who belongs here, that is known as a nation. बात समझ रहे हैं? तो नेशन से बना है national, means of the nation. कोई चीज हमारे मुल्क की है वो national है. That is an extension of the term national. Now the next term in this other than national is integration. Now this is a concept which is slightly contentious, तो मैं इसको जरा थोड़ा आपको थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा. Now again, what does integration mean? Now I'll give you a rule of social sciences. Those of you who are from natural sciences would need to understand this, more clearly. That in our social sciences disciplines, across all disciplines, how do we decide what is the definition of something? Are you getting my point? जैसे आपके यहाँ तो पता है everything is very concrete in natural sciences, 2 + 2 makes 4, that's final. But in our subjects, if I am saying that this is what democracy means, you will say that no, I don't agree, democracy means this. Third person will say that no, it means this. It means the rule of my family, that is democracy. Somebody will say something else. So we'll all be fighting amongst ourselves. So how to decide which is the correct definition? Which definition is the correct definition? So there is a rule which decides which is the correct explanation. Because every day somebody else taking
into his account his own interest would come up with a new definition जो हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से होगा, साहब ये बात सही, तो फिर तो रोज झगड़ा ही होता रहेगा। तो उसका रूल ये है कि द मीनिंग ऑफ एनी टर्म इज डिसाइडेड in relation to the context of its evolution. Did you get my point? जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट है तो उसका असली मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी डेमोक्रेसी का एग्जांपल दिया, डेमोक्रेसी का मतलब कौन डिसाइड करेगा? आज की दुनिया में बहुत से डिक्टेटर हैं, वो कहेंगे साहब डेमोक्रेसी का मतलब तो यही है, नॉर्थ कोरिया में कि मेरी हुकूमत रहे और फिर मेरे बाद मेरी बहन की हुकूमत रहे, वो तो यही कहेगा, कोई कुछ बोलेगा तो गोली मार देंगे मुझको, तो उसकी बात तो नहीं मानी जाएगी। तो कैसे आप डिसाइड करेंगे? तो आप ये देखेंगे कि डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट किन कंडीशंस में दुनिया में कहां पर निकला था, और उन कंडीशंस ने, उस कॉन्टेक्स्ट ने, उन हालात ने उस वर्ड को एक मीनिंग दिया था, और डेमोक्रेसी का एक मतलब वहां पर उभरा था या निकल के आया था, और दुनिया के दूसरे लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, माना, और धीरे धीरे अपने कंट्रीज में उसको अडॉप्ट करने की कोशिश की। तो जब भी ये अगर कोई डिस्प्यूट होता है, वैसे डेमोक्रेसी पे तो डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन अगर डिस्प्यूट होता है कि साहब डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, तो हम फौरन उसके एवोल्यूशन पे जाएंगे, कहां से ओरिजिन हुई उसकी, समझ रहे, कहां से उसका, कहां वो चीज ओरिजिनेट हुई है, किस कॉन्टेक्स्ट में ओरिजिनेट हुई, और फिर उसके मतलब को वहां से समझेंगे। उसी तरह इंटीग्रेशन है। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग हमारे देश में भी और दुनिया के दूसरे देशों में भी कहते हैं साहब इंटीग्रेशन जो है उसका मतलब होता है एसिमिलेशन। अंग्रेजी में एक और वर्ड है जिसका नाम है एसिमिलेशन, मैं भी एग्जांपल देता हूं आपको। तो कुछ लोगों का कहना है साहब दोनों का मतलब एक है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि सोशल साइंसेज में किन्हीं दो टर्म्स का, नेचुरल साइंसेज के बारे में मुझे पता नहीं, हो सकता आपके यहाँ भी ऐसा हो, कोई भी दो टर्म्स का मतलब एक नहीं होता, नेसेसरीली नो। होता तब है जब हमें नहीं मालूम होता, तो हम चार चीजों को कह देंगे कि साहब चारों का मतलब एक ही है। इंडिया के प्रियम्बल में लिखा हुआ, जो पिछली बार हम डिस्कस कर रहे थे, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सब एक ही चीज है साहब, मिलती जुलती नहीं, एक नहीं है, दे आर ऑल डिफरेंट। यू नो, I don't know this, but that does not mean that the difference is not there. Similarly, integration and assimilation are two very different things. And I'll first tell you the difference between the two, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है या डिफरेंस क्या है, और फिर हम उसको देखेंगे कि उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कौन सा वर्ड ज्यादा सही है इस मतलब को समझने के लिए। क्योंकि इन सारे टर्म्स का मतलब यूनिवर्सल होता है। ऐसा नहीं आप नहीं कह सकते कि साहब हिंदुस्तान में हम कहेंगे इसका मतलब ये, पाकिस्तान वाले कहेंगे इसका मतलब कुछ और है, बांग्लादेश वाले कहें तीसरा है, तो पूरी दुनिया में सब लोग अपना अपना नया मतलब बना दें। नहीं बना सकते क्योंकि ये यूनिवर्सल टर्म्स। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, although I tend to give very elementary examples but they stick to the mind, that's why I give that example. जैसे फॉर एग्जांपल you take a glass of milk and put some sugar in the milk and stir it, what happens? कुछ देर बाद शक्कर जो है वो दूध में घुल जाएगी। तो आप जब दूध बात, नफीस साहब प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें। हाँ, कुछ देर बाद क्या होगा कि शक्कर जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी दूध के अंदर। तो अब आप शक्कर से अगर बात करना चाहें, इफ बोथ वर टू टॉक, तो शक्कर तो खत्म हो गई, है ही नहीं। हाँ, दूध कहेगा कि साहब हाँ बहुत अच्छी बात हुई क्योंकि मेरे अंदर अभी टेस्ट नहीं था, शक्कर की वजह से टेस्ट आया। तो दूध के अंदर टेस्ट डालने के लिए शक्कर का मर्डर हो गया, शक्कर खत्म हो गई। The sugar is dead, the milk is very happy because the milk has got now taste. That is the meaning of integration. Now, what is the meaning of that is the meaning of assimilation. Sorry, कोई किसी ने लिख दिया तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है वो भी मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यू गो इन द गार्डन आउटसाइड ऑफ योर हाउस and take different kinds of flowers and bring that all the flowers together and make a bouquet. There could be any kinds of flowers, you know, rose, lily, poppy, कुछ भी, sunflower भी डाल दीजिए जो आमतौर से गुलदस्ते में नहीं होता, लेकिन अगर आपको पसंद है वो भी डाल लीजिए। एक गुलदस्ता बन गया, उसको रख दीजिए अपने। तो गुलदस्ते की यूनिकनेस क्या है? What is the uniqueness of a bouquet? You know, there are different flowers, they are together, but all flowers retain their distinct identity. No flower is obscuring the beauty of the other flower. कोई फ्लावर दूसरे की ब्यूटी को कम नहीं कर रहा, सब अपनी जगह खूबसूरत है। कोई आप में से कह सकता है, मैडम कह सकती है मुझे रोज पसंद है, दूसरे साहब कह सकते हैं मुझे लिली पसंद है, कोई कह देगा मुझे पॉपी पसंद है, मैं कह दूंगा मुझे सनफ्लावर पसंद है, अपनी अपनी पसंद है, लेकिन सब हैं उसमें। तो सब अलग होते हुए भी एक है। यह है इंटीग्रेशन का मतलब इन दिस कॉन्टेक्स्ट। नाउ देयरफॉर
These two terms are very different, integration and assimilation. But how to decide which is right in this context? You have to go to the context of its evolution. The idea of national integration came in the European continent. When so much of ferment was going on on the European continent, in the conflict between religion and politics, which I mentioned last time, in the medieval ages, and the European people were fed up with this conflict of religion and politics, or religion interfering in politics. So they decided to divide those things, religion and politics, create a secular state, and from there, that idea of integration came out. Are you getting my point? So that integration, or the meaning of integration, evolved on the European continent, and different people in the world borrowed that concept. We also borrowed that concept. Similarly, as we borrowed democracy. तो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट हमने जो बोरो किया यूरोप से, जो ग्रीस में निकला था, तो आज इंडिया में कोई आदमी ये नहीं कह सकता सर डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि मेरी हुकूमत रहे बस और मेरी फैमिली की रहे, यही डेमोक्रेसी नहीं. यू कैन नॉट से दैट. यू कैन गिव इट अ न्यू नेम, यू कैन से इट इज डेमोक्रेसी फलाना or democracy of X or Y, but you can't call it democracy because the whole world means certain things by democracy. There is a universal definition of democracy. Similarly, there is a universal definition of national integration, and that means that people of different varieties and kinds, whatever kind you have, you are free. You have your kinds, you should not violate the law, and our job is to bring all these people together. जिसने किसी ने लिखा जो बड़ा स्लोगन हमारे यहाँ cliched, unity in diversity. Actually, that is what the meaning is. That you have to unite the people by retaining their diversity. मैं ये कहने वाला कोई नहीं होता कि मेरी जो फीचर्स हैं वो आपसे अच्छे हैं, या आप मेरे फीचर्स को मान लीजिए. आप अपने फीचर्स को रखिए, वो आपको मुबारक है, मेरे अपने फीचर्स. In terms of food, in terms of dress, in terms of any cultural aspect, in terms of your region, in terms of your language, in terms of your religion, in terms of your caste, or whatever it is. आप जो चाहें वो करें, मैं जो चाहूं वो करूं, लेकिन उसके बावजूद भी we have to come together, and that is what we need to do to create national integration in the country. That is the definition. Now, on the basis of this definition, we'll try to understand what is the state of national integration in India. So our job today will be to try to understand what are the problems in the path of national integration, why national integration is not happening the way it should happen in our country. What are the obstacles, what are the problems, and what are the challenges. कुछ challenges हमने पिछली बार भी flag कर दिए थे, वो बार discuss नहीं करेंगे. We talked about communalism, one of the major obstacles in the path of national integration, where people fight in the name of religion. We talked about casteism, where people fight in the name of caste. We talked about, say, regionalism, where people fight in the name of regional identity, or linguism, linguistic identity, and so on. They are repeated rather many times, and therefore I don't want to go into these concepts. You all understand, what they are and how the problems are there in our country. I'll talk about a few things which are not usually discussed in this context. And those few things are very important in the discourse to understand national integration. One important thing is the manipulation with historical facts. I should not be using the word manipulation, because many a time it is not deliberate. It is ignorance of the person, whereby you have heard something from someone somewhere and you keep on perpetuating the same thing and trying to tell others, but actually that is not a fact. You never try to check the facts. आपने कभी कोशिश नहीं की चेक करने की फैक्ट्स, या मैंने कभी कोशिश नहीं करी. हम उसी चीज को आगे भेजते चले जाते हैं, which is very dangerous, because history में बहुत सी चीजें होती हैं, and there could be varying interpretations of history. I'm not saying that A is right or B is wrong. No, I'm just saying that there are certain things which we can easily know. We can easily go and look for them, whether it is a fact or not. But there are certain myths in the society. इसको कहते हैं ना, myths होते हैं. बहुत सी ऐसी बातें होती, बहुत से ऐसे कॉमन सेंसिकल बातें होती हैं जो आपको कोई आदमी कहेगा साहब आपको इतना भी कॉमन सेंस नहीं, आपको ये भी नहीं पता, एक्चुअली उसको भी नहीं पता, लेकिन वो बात कॉमन सेंस बन गई. Are you getting my point? It has become common wisdom in the society, and it is something very dangerous when something becomes common sense, which is wrong, but we take it as common sense and we keep on spreading it, even well-read people.
and therefore we are contributing in a very negative manner in poisoning the minds of the next generation by something which is not even true. मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर वो सही बात भी है और कोई बुरी बात है तो उसको बार बार कहने की कोई जरूरत नहीं. We don't need to repeat those things which are very divisive, which might have happened in the past. There are very divisive incidents which happened in the recent past in the country also. But there is no need to repeat them repeatedly if you want to create more unity in the society. अगर आप हमारी और आपकी दोस्ती होनी है और हम बार बार अपने पेरेंट्स की लड़ाई की बात करेंगे तो दोस्ती तो नहीं हो पाएगी. तो अगर लड़ाइयां भी हुई थी हमारे पेरेंट्स के बीच में, फॉर एग्जाम्पल एट द इंडिविजुअल लेवल, इफ वी कीप ऑन हार्पिंग टू दोज हिस्टोरिकल वुंड्स in our family, we can't have good relations now. So मेरा कहने का मतलब है, even if it is true, but most of the times those things are not true. Many things are masquerading in the society as common sense, and we all take it as fact, क्योंकि सब यही कह रहे हैं. बहुत सी बातें होती ना, सब लोग यही बात कह रहे हैं इसलिए हम भी ये कह रहे हैं. पता लगा कि बहुत दिन बाद आपको शायद पता लगेगा कि वो बात तो गलत थी, लेकिन सब ये बात कह रहे हैं, जिसको मैंने कहा ना कॉमन सेंस. कॉमन सेंस का मतलब क्या होता है? Common sense again is a very important idea for us to understand. हम लोग बड़ा लूजली ये टर्म यूज करते हैं कॉमन सेंस. अक्सर एक दूसरे से कहते हैं ना, सर आपको कॉमन सेंस नहीं है. मतलब कॉमन सेंस का मतलब विच इज सो ऑब्वियस, यू नो, वी ऑल शुड नो दिस, इट इज सो ऑब्वियस. जैसे इफ वी वर किड्स एंड some teacher came to the classroom and sat on the table. हम अगर बच्चे होते और कोई टीचर आके हमारी क्लास में टेबल पे बैठ जाए तो हम बच्चे आपस में कहते कि सर को कॉमन सेंस नहीं है, टेबल पे नहीं बैठते हैं, चेयर पे बैठते हैं. होता है ना, ऐसे हम कॉमन सेंस यूज करते हैं. वो तो बच्चों की बात होगी, लेकिन हम आप भी बड़ा ये वर्ड यूज करते हैं ना अक्सर अपने. फला को कॉमन सेंस नहीं, सब ये बात तो सब जानते हैं. सब जानते हैं लेकिन गलत जानते हैं. They don't, nobody knows it, nobody has gone and checked it, but that becomes common sense. तो कभी कभी कोई डेंजरस आइडिया अगर कॉमन सेंस बन जाए, मतलब सब लोग उसको मानने लगे जबकि वो सही नहीं है, तो नतीजा क्या होता है? इट बिकम्स एक्सट्रीमली डेंजरस बिकॉज इट इज क्रिएटिंग डिस्कॉर्ड इन द सोसाइटी. That narrative of history is creating a discord in the society, division in the society, poisoning minds of people, and it is something wrong also. It has no basis. समझ रहे? So the point is that whenever we talk about anything, हम आप तो खैर टीचर्स हैं, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, and whenever we transmit any information from one person to the other, at least as well educated, well read people, we need to go and check for ourselves. हम कम से कम देख लें कि भैया सारे लोग ये बात कह रहे हैं, क्या ये बात सही है? Is there some historical truth to this? Is there some basis to this idea? ये बात सही है कि गलत? अच्छा फिर जी कोई साहब बोल. अच्छा संदीप साहब अपना फोन ऑफ कर, अरे माइक ऑफ कर. अच्छा दूसरी प्रॉब्लम इसमें ये होती है जो मैंने कल आपको जिक्र किया था, जो एक्टर्स हैं हमारे समाज में, पॉलिटिकल एक्टर्स हु आर ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर दीज थिंग्स. वो हमेशा इन चीजों के लुक आउट पे रहते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये तो उनके लिए बड़ी अच्छी बात मिली. इफ देयर इज सम myth which is masquerading as fact in the society, मतलब कोई बात झूठ है, गलत है, लेकिन वो समाज में आमतौर से लोगों के दिमाग में है, बहुत ज्यादा इंट्रेंच नहीं है लेकिन है, तो पॉलिटिकल एक्टर्स को बड़ी अच्छी बात मिल जाती है, वो फौरन उसको कैच करते हैं, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात मिली है, और फिर उसको वो आपके दिमाग में और इंट्रेंच करते हैं कि नहीं नहीं ये बात बिल्कुल सही है, और एक्चुअली यही सही है और यही हमारा इशू है और हमको अब यही सॉल्व करना है. आप अपनी प्रॉब्लम भूल जाइए, जो प्रॉब्लम अभी सामने की, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, ये प्रॉब्लम पुरानी वाली जो है ये सबसे अच्छी प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करना है. तो नतीजा क्या होता है? हम सब उधर चले जाते हैं और अपने पाथ से डाइग्रेस कर जाते हैं, जो पिछली बार हम डिस्कस कर रहे थे. आवर जॉब इज टू पुट रेस्ट्रेंट्स ऑन पीपल हु होल्ड पॉलिटिकल पावर ऑन आवर बिहाफ इन अ डेमोक्रेसी. When somebody is having political power in the state or in the district or in a village or at the country level, it is on your behalf and your job is to check those people who are in power so that उनकी भी मदद हो रही. चेक का मतलब ये नहीं कि उनको आप कुछ करने मत दें. Their job is to run the country, state, village, city, but they have to keep in the limits. The problem with power is that it always goes in your head. दुनिया में सबसे बड़ा इंटॉक्सिकेंट जो है ना वो पावर है. आमतौर से लोग गलत बोलते हैं कि शराब पीने से नशा आ जाता है. शराब और आप तो बहुत ही छोटी मोटी चीजें हैं. सबसे बड़ा नशा दुनिया में पावर का होता है. The moment you get power in, एक बड़ी मशहूर सेइंग आप सबने सुनी होगी लॉर्ड एक्टन की, कि पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली. तो पावर का पहला प्रॉब्लम होता है कि वो फौरन हमें करप्ट करता है. अभी हम बड़ी अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं, जैसे ही हमारे पास पावर आएगा हम बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, फिर हम दूसरी तरह से बात करने लगेंगे, बिकॉज आई टेंड टू मिस यूज दैट. तो पावर जैसी आता है उसके अंदर एक टेंडेंसी है कि वो आपको अपने रास्ते से बहका देता है. यही तो काम किसी नशे का होता है कि आप सीधे नहीं चल पाएंगे, टेढ़े चलेंगे. वैसी पावर है, वो आपको रास्ते से हिला देगा और फिर आप गलत काम करने के लिए
you will tend to do the wrong thing. So the job of the people is to ensure that the people who have political power at any level remain within the limits. So that is our job. But if we also fall prey to myths or wrong, rather information or a common sense which has no basis, then we are also aiding them, abetting their work, and we are contributing to all the problems which are there in the society. So that is something which, that narrative of history or the creation of common sense in the society is something very important, which is one of the most important obstacles in the path of national integration for any country. But we are basically concerned with our country, so I'm talking about this. The next point which I want to flag, to my mind, is the most important point, and which is never talked about in relation to national integration. बिकॉज इसकी बात होती है कभी कभी, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं होती. मेरे समझ से इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है जिसको कहते हैं इकोनॉमिक डिस्पैरिटी. अब मैं इसको जरा थोड़ा डिटेल में आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी समझ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे देश के अंदर खास तौर से स्पेसिफिकली इन द लास्ट 30 years टू बी प्रिसाइज, 1990 के बाद से इंडिया में जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हमेशा से थी, कुछ तो अमीर गरीब का डिफरेंस होता था, लेकिन आफ्टर 1990 दिस हैज इंक्रीज्ड वेरी फास्ट. And this has increased very fast because of the kind of economic policies which India started following after the reforms of early 90s. 1990s तक इंडिया के जो इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे मुल्क की थी, आप सब जानते हैं, it was a mixed economy model, and we were following a model whereby we were not openly, going after capitalism or free market economy. लेकिन 90 के बाद से हमने अपना रास्ता बदला. उसके बहुत से reasons थे, I don't want to go into that. I also don't want to talk about the compulsions of the government. I want to talk about the consequences for the people. मैं तो consequences को देख रहा हूँ, क्या हुआ. अब उस वक्त से जो इकोनॉमिक पॉलिसी हमने फॉलो की, उसका नतीजा क्या हुआ? जाहिर सी बात है, फ्री मार्केट इकोनॉमी की पॉलिसीज फॉलो करनी शुरू की, और वो धीरे धीरे शुरू होती. जो कैपिटलिस्ट इंस्ट्रॉट होता है किसी मुल्क के अंदर, जब कैपिटलिज्म एंटर करता है किसी मुल्क में, तो धीरे धीरे एंटर करता है. ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भी जब आए थे तो इंडिया में रिक्वेस्ट करके आए थे कि हमें थोड़ा बहुत यहाँ ट्रेड करने दिया जाए, और थोड़ा सा आपके यहाँ रिक्वेस्ट करके आए कि भैया एक कोने में हमें रहने दो अपने घर में, फिर आपके घर पे कब्जा कर लिया, फिर आपको गुलाम बना लिया. वो भी कैपिटलिज्म का एक रूप था, जो बहुत ही एलिमेंट्री रूप था, जो हमारे यहाँ पहले आया था. अब ये दूसरा रूप है. जब आप सबको याद होगा 1990 बहुत पुरानी बात नहीं है, जब ये सारी कंपनीज आना शुरू हुई और वी स्टार्टेड चेंजिंग आवर इकोनॉमिक पॉलिसी, सो आवर गवर्नमेंट आल्सो सेड दैट वी विल अलाउ दीस पीपल ओनली इन क्रिटिकल एरियाज. शुरू में बात क्या हो रही थी साहब? क्रिटिकल एरियाज में हम सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ करेंगे, बाहर की कंपनीज. दे विल कम इन हेवी इंडस्ट्रीज और वेरी टेक्निकल एरियाज, वेरी सच एरियाज वेयर इंडियन नो हाउ इज नॉट दैट मच. ठीक है, हमको ये बात बताई गई, जो कि गलत थी. दीज कंपनीज विल नॉट कम इन सर्विस सेक्टर, मतलब बैंकिंग में नहीं आएंगे, ये इंश्योरेंस में नहीं आएंगे, इन सारी चीजों में नहीं आएंगे, और जहां आएंगे भी वहां पर इनका इक्विटी पार्टिसिपेशन कंपनी में 50% से बहुत कम होगा. मतलब they will not be controlling companies, they will just be coming and investing in our country and we will all benefit. क्या हुआ साहब? धीरे धीरे things started changing. आज आप सब जानते हैं कि वो बाहर की कंपनी आलू का चिप्स बनाने भी हमारे मुल्क में आ रही है, टोमेटो सॉस भी बना रही है, हर चीज बना रही है, बिस्किट भी बना रही है, क्या नहीं बना रही, हर तरह की कंपनीज आ गई विद फुल ओनरशिप. इक्विटी पार्टिसिपेशन का भी रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गया. नाउ दे ओन कंपनीज इन आवर कंट्री. Now they are owning banks, they are owning insurance sectors, they are owning everything. That is how they enter, because they are so powerful. They have got so much of economic heft that once you allow them inside your house, they are so very powerful that any force in your house is not going to restrain them. और उसका नतीजा क्या हुआ कि कैपिटलिज्म फुल ब्लोन आज 30 साल बाद हमारे सामने. उसका नतीजा क्या हुआ? अभी कुछ साल पहले आपने एक पिछले साल शायद ऑक्सफैम की रिपोर्ट पढ़ी होगी, जो आप सब जानते हैं, लेकिन डेटा से जरा बात क्लियर हो जाती है जरा दिमाग में. उन्होंने ये बताया कि इंडिया 73% ऑफ वेल्थ इज ओन्ड बाय 1% ऑफ इंडियंस. हाउ क्रूअल कि हमारे देश की 73% वेल्थ सिर्फ 1% लोगों के हाथ में. अभी आप देखें कि कोरोना की क्राइसिस हुई और पूरे मुल्क के अंदर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, कितने लोगों की नौकरी चली गई, कितने लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, कितने लोगों की रोजी रोटी छिन गई. लेकिन अगर आपने अखबारों को सही से पढ़ा होगा तो जो हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका प्रॉफिट इतना बढ़ा कोरोना में जितना कभी नहीं बढ़ा था. आपने मार्क किया इस बात को? The big players, Adani's and Ambani's and all these people, इन्होंने इस काल में जब इकोनॉमी नीचे जा रही थी, इनकी नीचे नहीं गई, इनकी बहुत तेजी से ऊपर चली गई. हाउ इज इट पॉसिबल? अगर देश की इकोनॉमी नीचे गई, भाई हालात खराब थे, दिन अच्छे नहीं थे,
ऊपर से कोई आपदा आ गई तो सबके ऊपर असर पड़ना चाहिए ना। ठीक है, अमीर पे थोड़ा कम असर पड़े, गरीब पे नहीं साहब, हम पे तो बहुत असर पड़ा, हमसे नीचे वाले तो मर गए और ऊपर वाले बहुत ज्यादा अमीर हो गए। ऐसा क्यों? दिस मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द सिस्टम, दैट द सिस्टम इज बेनिफिटिंग सम पीपल टू मच एट द कॉस्ट ऑफ ऑल अदर्स। बात समझ रहे हैं? अच्छा, नेशनल रिसोर्सेज जो हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि कहीं पे पैसा अनलिमिटेड हो किसी देश में, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। भाई जैसे एक केक है, क्लास में आई, अब केक का हिस्सा सबको एक एक मिलना है, तभी सब लोग केक खा पाएंगे। आप लोग अगर 50 लोग क्लास में बैठे, अब 2 लोगों ने मिलकर आधी से ज्यादा केक खा ली तो बाकी को कहाँ मिलेगा? तो शेयर तो उतना ही है वेल्थ का। अगर 2 लोग या 3 लोग या 4 लोग या 5 लोग या 10 लोग सारा ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? और वही हो रहा है, और वो हो इसलिए रहा है नॉट बिकॉज ऑफ एनी गवर्नमेंट और सो। गवर्नमेंट से मतलब नहीं, सिस्टम चेंज हो गया। मैंने बताया ना 30 साल। अब जो भी गवर्नमेंट होगी वो कुछ नहीं करेगी, वो तो बिकॉज दैट इज हाउ व्हाट वी हैव डन, वी हैव अडॉप्टेड अ मॉडल व्हिच इज टोटली कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट मॉडल एक पिरामिडिकल मॉडल होता है, जिसमें टॉप हमेशा बहुत ही छोटा होता है, कुछ लोग टॉप पे और सब नीचे, और ये पिरामिड चौड़ा होता जाता है नीचे से, मतलब लोग और गरीब होते चले जा रहे हैं, ऊपर से लोग नीचे से टपकते चले जा रहे हैं, और ऊपर कम से कम लोग होते जा रहे हैं, तो कम लोग अमीर होंगे और नीचे ब्रॉड बेस बढ़ता चला जाएगा। उसका नतीजा क्या हुआ कि हिंदुस्तान जो है आज हमारा मुल्क, हमारा देश, जो कि थर्ड वर्ल्ड में काफी अच्छी कंडीशन में हम तो बाकी बहुत से देशों से तो बहुत अच्छे हैं ना, फिर भी वी आर एट नंबर 102 इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। दुनिया में हम लोग से अगर कोई पूछता है कि भूखमरी की बात करें तो हमारे दिमाग में फौरन अफ्रीका वगैरह दिमाग में आते हैं कि अफ्रीका में बड़े लोग भूखे मरते हैं। गलत है, जितने लोग इंडिया में भूखे हैं उतनी दुनिया में कहीं नहीं। समझ रहे? पिछले 10 सालों से हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे बहुत हाई रेट कर रहे हैं। कुछ ऐसे इंडेक्स है जिसमें हाई रेट करना मतलब लो रेट करना होता है, कहीं कहीं तो हाई बहुत अच्छी बात होती है। यहाँ हमारी रैंकिंग आउट ऑफ 117 कंट्रीज वी आर 102 एंड वी हैव ऑलवेज बीन अराउंड दिस इन द लास्ट 5 years। अब मैं सिर्फ पिछले 5 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले के 5, उससे पहले के 5, उससे पहले के 5। इन 5-5 साल की साइकिल में क्या हुआ है? इन द लास्ट 5 years, आप इसको ध्यान से सुनिए, इन द लास्ट 5 years द नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया हु हैव गॉन हंग्री, मतलब जो कल खाना जिनके पास था आज खाना नहीं है, इट इज मोर देन द एंटायर वर्ल्ड कंबाइंड। डिड यू गेट इट? मतलब पिछले 5 सालों में जितने लोग हिंदुस्तान में भूखे हुए हैं, मतलब जिनके पास कल रोटी थी आज नहीं है, वो नंबर इतना है जितना पूरी दुनिया में जो लोग भूखे हुए हैं उससे ज्यादा है। और ये पिछले 5 साल की बात नहीं, उससे पहले वाले 5 साल में भी यही हुआ था, उससे पहले 5 साल में भी यही हुआ था, और उससे पहले 5 साल में भी। Did you get the numbers? Of course, no newspaper will talk about it, no government of that day will talk about it because it goes against them. But the point is that this is not happening because of some policy decision. It is happening because the system is changed in some way. System में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ देबाराती। दास साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैडम। Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, sir. Actually, no data is available on economic disparity after 2011, which is usually released by NSSO. Sir, am I audible? हाँ बोलिए मैम। Sir, no data for estimating economic disparity is available, which is usually released by NSSO. So how could we estimate that the number of people in hunger is increased in the last 5 years, sir? मैडम आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। एक्चुअली आई डिड नॉट deliberately talk about NSSO data, about the politics of data, other things, because that becomes very political. I don't want to talk about any particular government. I am talking about the global hunger index, which is released every year at the international level by the International Food Policy Research Institute. It is an internationally recognized data which releases global hunger index and which ranks countries on the basis of the kind of hunger you have. So that data I'm talking about from that institute, which is an international institute. Nobody has ever contradicted that data, even from our government or any other government. And yes, sir. And that is, मैंने बताया ना आपको, it is not about any particular government, So don't look at what I say from the prism of one party or the other. It is happening for the last 30 years. इसलिए मैंने पहले क्लियर कर दिया कि ये चीज 30 साल से हो रही है। 30 साल में हर तरह की सरकारें आ गई, इसलिए कोई सरकार, कोई पार्टी भी नहीं कह सकती कि हमें मौका नहीं मिला। सबको मौका मिला और सबने उसको कंट्रीब्यूट किया है। So they have all been guilty in the same way anyway. So the point basically is that this disparity, which, and I gave you just one data, मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। अभी
2003-4 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3-4 में अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी बनाई थी गवर्नमेंट ने. The government of India instituted a committee, and you know the government committee, any government committee will always underplay the negative thing because it is the government committee. That government committee said that 800 million Indians, आप समझ सकते हैं 800, मतलब at that time it was around 80% of the population of the country. 800 million Indians live at less than ₹20 a day. Can you imagine? 2003 में भी इतना सस्ता नहीं था. उस वक्त भी 20 रुपए में एक चिप्स के 2 पैकेट ही मिलते थे. मतलब हमारे 80% भाई बहन हमारे देश के 2003-4 में भी, आज उससे बुरी हालत होगी, अच्छी नहीं होगी, क्योंकि हम तो एक रोड पे चल रहे हैं जो और खाई की तरफ ही ले जा रही है. हमारे 80% देशवासी जो हैं उनके पास 2 वक्त का खाना खाने के पैसे नहीं थे. हमारे आपकी तनख्वाहें तो टीचर की बढ़ गई, वी आर हैप्पी. मैं उस पर भी आऊंगा, व्हाई इट हैज इंक्रीज्ड एंड व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस. बट द पॉइंट इज दैट मिडिल क्लास डज नॉट बॉदर बिकॉज मिडिल क्लास इज रिलेटिवली वेल ऑफ. तो हमको लगता है जब आदमी को खुद तकलीफ नहीं होती, जैसे होता है ना कि हम कोरोना से अफेक्टेड नहीं हुए तो हमको लगता है कि कोई नहीं हुआ यार, ये लोग ऐसी ही बातें कर रहे हैं. वो तो जब आदमी खुद अफेक्टेड होता है तब उसको पता लगता है कि कितनी तकलीफ है उसको. सो द पॉइंट इज दैट सिंस द मिडिल क्लास यूजुअली इज वेल ऑफ, यू नो, इज प्रोग्रेसिवली वेल ऑफ इन द लास्ट 15-20 years. So usually we think that things are very fine and these things are overblown, you know, ये बात कुछ ज्यादा कही जा रही है. ऐसा नहीं है, हमारे हर तरफ तो प्रॉस्पेरिटी नजर आ रही है. कल तक हमारे घर में एक कार थी, अब 2 हो गई, तो हालात तो इंप्रूव ही हो रहे हैं. लेकिन द पॉइंट इज दैट हालात कुछ लोगों के इंप्रूव हो रहे हैं, बाकी के नहीं हो रहे. तो होता क्या है, जो मैंने आपको बताया, पिरामिड में द बेस इज एक्सपैंडिंग एंड उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है. जब ये बेस एक्सपैंड हो रहा है और ज्यादा लोग गरीब हैं और गरीब होते चले जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स यू नो ऑल द प्रॉब्लम्स व्हिच यू आर सीइंग एवरी डे. So what is happening that these people are very likely to take the wrong track because everybody has to survive it. So therefore what happens that the temptation for these people to join Naxalism or terrorism increases. जाहिर सी बात है, जो आदमी जिसको खाने को पैसा नहीं है, आप रोज अखबार में पढ़ते हैं कि किसी गांव के अंदर उड़ीसा में किसी औरत ने अपने बच्चे को बेच दिया, किसी ने, तो आदमी जब इस लेवल पर पहुंच चुका है, खाना खाने के लिए कुछ भी कर रहा है, तो वो उसके लिए उसकी क्या अहमियत है. अगर किसी ने कह दिया कि साहब ये मैं आपको एक बॉक्स दे रहा हूं, जाके आप एक ट्रेन में रखाइए, इतने पैसे मिलेंगे, that person is not supposed to bother about what the box contains and what will happen after that. You know, he is concerned about his children, you know, who are looking at him for some food now at this moment. So the point is, और उसका नतीजा क्या हुआ कि in the last 15 years Naxalism has spread to more than 160 districts in the country. उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है इकोनॉमिक पॉलिसी का. आमतौर से पॉलिसी प्लानर्स दोनों को अलग अलग देखेंगे बिकॉज दे डोंट वांट टू लिंक इट. दे डोंट वांट दैट यू क्रिटिसाइज द इकोनॉमिक पॉलिसी. दे डोंट वांट दैट कॉमन पीपल टॉक अबाउट. जैसे मैडम ने भी सवाल किया ना, बड़ा अच्छा सवाल इसलिए था क्योंकि आपने ये कहीं किसी अखबार में पढ़ा ही नहीं होगा. अब आप देखिए कि छोटी से छोटी बात होती है, विराट कोहली स्लिप्ड इन द बाथरूम, दैट कम्स इन द न्यूज़पेपर्स बिकॉज दैट इज इंटरेस्टिंग. टुडे न्यूज हैज बिकम एंटरटेनमेंट. तो वो एंटरटेनमेंट है. कोई फिल्म स्टार कोई छोटी सी चीज कर दे, अखबार में स्प्लैश हो. कोई क्रिकेटर कुछ करते हैं क्योंकि लोग इंटरेस्टिंग चीज है. लेकिन ये चीज जो हमारे देश के सर्वाइवल के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट बात कह रही है, ये कोई अखबार, किसी अखबार ने कैरी नहीं किया, कभी नहीं करते. एवरी ईयर दिस न्यूज कम्स इन बट इट इज नॉट कैरीड बाय एक कोई बेचारा गरीब अखबार किसी 8वें पेज पे लिख देता है. हमारे आप जैसे लोग उसको कभी पढ़ लेते हैं. नोबडी नोज दिस एक्चुअली बिकॉज इट इज नेवर मेंशन. जैसे मैंने अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी की, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमेटी है ना, कहीं उसके बारे में आया जिक्र. नोबडी टॉक्स अबाउट इट बिकॉज इट इज नॉट ग्लैमरस. If a TV channel starts talking about non-glamorous things, आप उसको देखेंगे ही नहीं. आपको तो अट्रैक्टिव चीजें चाहिए ना. आपको मतलब मुझे, हम सब, we want to go and look at things which are attractive. और वो भी हमको चाहते हैं, ट्रैप किए रहे हैं बेकार की चीजों में. वो नेता ने उस पर ये कह दिया, what is उसका कोई कॉन्सिक्वेंस है? आज इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया, फिर दूसरी पार्टी के नेता ने उसके बारे में ये बात दूसरे ने कह दी, फिर इन्होंने ये बात कह दी. इट इज टोटली इनकॉन्सिक्वेंशियल व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. वैसे जैसे क्लास में हम आप कुछ बात कर रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ा? The important thing is the policy, you know, what is happening in the country in terms of policy. What is the consequence? Nobody talks about that because neither the TV channels are interested, nor the government is interested, and people also, जो हमने पहले बताया था आपसे कि जो हमारा टास्क है कि हम मांगे अच्छी चीज, हम मांग नहीं रहे अच्छी चीज, वो हमको गलत चीज दे रहे हैं, हम उसको कंज्यूम करके खुश हो रहे हैं. That is what entertainment TV is all about. Anyway, so the point is that this is directly leading to the increase in soft crimes. देश में soft crimes बढ़ रहे हैं. देश के अंदर इस तरह के हाई क्राइम्स जो हैं, खतरनाक क्राइम्स, टेररिज्म और नक्सलिज्म बढ़ रहा है. उसका ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब इसी वजह से, मतलब दिस इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स दैट इज इकोनॉमिक डिस्ट्रेस
in the country. Or the economic disparity, when people are seeing that some people are earning everything, you know, every day. जैसे मैंने बताया कि अभी अमीर लोगों के वेल्थ कभी 36%, कभी 40% इस प्रोपोर्शन में बढ़ी है पूरे कोरोना के पीरियड में. उससे पहले बढ़ती रहती है, कभी उनको लॉस ही नहीं होता. गरीब आदमी बेचारे की इनकम कम होती चली जा रही है. तो जाहिर सी बात है, जब आप इतना हार्ड प्रेस्ड होते हैं किसी कॉर्नर में, तो the likelihood of that person going on the wrong track, of course, we all understand, increases, and that's why that is the problem. And it is a global issue, but for our country, you know, especially the kind of economic policies which we have embraced wholeheartedly, and we are running fastly towards that end, has created this situation. अब एक सवाल अभी आ सकता है जो अभी ये इशू उठा था इससे कि साहब जब इतनी सिचुएशन सीरियस है तो why nobody is talking about it? अब कैपिटलिज्म का एक बड़ा, मैं बार बार कैपिटलिज्म वर्ड यूज कर रहा हूं तो उससे आप ये मत लें कि मैं कैपिटलिज्म का कोई बड़ा क्रिटिक हूं एंड आई एम अ कम्युनिस्ट और अ मार्क्सिस्ट. आई एम जस्ट ट्राइंग टू एनालाइज द सिचुएशन, यू नो, फ्रॉम माय ओन कंट्रीज पर्सपेक्टिव. कैपिटलिज्म की एक बड़ी अजीब सी चीज है कि वो भी एक इंटॉक्सिकेंट रिलीज करता है. एंड व्हाट इज दैट इंटॉक्सिकेंट? इट नोज, इट रियलाइजेस दैट द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू इट्स पॉलिसीज इज द मिडिल क्लास. क्योंकि आप सब जानते हैं, और हमें से ज्यादातर लोग मिडिल क्लास के ही होंगे, कि मिडिल क्लास जो है वो ओपिनियन मेकर होता है समाज में. गरीब आदमी की तादाद ज्यादा है इंडिया में, गरीब के नंबर्स बहुत हैं, लेकिन गरीब ओपिनियन नहीं बनाता. वो आपको देखता है. जो ओपिनियन हमारी होती है वो गरीब की होती है. वो तो लगता है उसको ये पढ़े लिखे लोग हैं, अगर ये लोग ये बात कह रहे हैं तो ये बात ठीक होगी, हम भी पीछे आ जाते हैं. वो कोई लीडरशिप नहीं करते. कभी आपने ये नहीं देखा होगा समाज का लोएस्ट लेवल का आदमी जो सबसे गरीब है वो कोई चीज लीड कर रहा हो. लीड हमारे ही आप जैसे लोग करते हैं, मिडिल क्लास के लोग. They are the opinion makers. कैपिटलिज्म क्या करता है कि उसकी अपनी एक नीड है, उसमें बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस करूंगा. उसकी वजह से वो मिडिल क्लास को पर्क अप करता है. मतलब मिडिल क्लास इज आर्टिफिशियली पर्क्ड अप. आर्टिफिशियली मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिस्टम इतना अमीर नहीं है, लेकिन आप अमीर हो रहे हैं. आप बात समझ रहे हैं? हमारे आप जैसे लोगों की तनख्वाहें पिछले 15 साल में जितनी बढ़ी हैं, भारत जैसे इकोनॉमिक कंडीशन के देश में नहीं बढ़नी चाहिए. वो तो हमें मिल रहा है, हम खुश हैं. लेकिन अगर आप अपने दिल से पूछिए तो the kind of salaries we are getting, we should not be getting in India at this point of time. You know, we should be getting less. जैसी हमारे देश की ओवरऑल हालत है और जैसे हमारे और देशवासियों की नीड है, लेकिन हमें खूब मिल रहा है और मिलता चला जाएगा आगे. इसलिए हमको, आदमी तो खुशी होता है, हमें और पैसा मिले तो कितनी अच्छी बात है. So the point basically is that we are the middle class. तो हमको आर्टिफिशियली पर्क अप किया जाता है. तो उसका नतीजा क्या होता है? हम सब खुश होते हैं, हम सब देख रहे होते हैं हमारे आसपास. जाहिर सी बात है, मिडिल क्लास के लोगों का इंटरेक्शन भी आपस में ही होता है. हम सब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं. हमारी फैमिली के लोग भी उसी लेवल पर हैं. तो हम सब के, हमारा कोई कजिन इंजीनियर है, उसकी भी तनख्वाह बहुत ज्यादा है, वो मल्टीनेशनल में काम करता है. मैं टीचर हूँ, हमारी सिस्टर है, ये वो कहीं और काम करती है. हम सब की तनख्वाहें बहुत अच्छी है. वी आर वेरी वेल ऑफ एज कम्पेयर टू आवर प्रीवियस जनरेशन. तो हमको कोई परेशानी नहीं. तो हमको जब कोई परेशानी नहीं है तो वी नेवर रेज अ वॉइस बिकॉज वी डोंट नीड थिंक दैट देयर इज अ नीड टू रेज वॉइस. जैसे मैंने अभी जो बातें आपको बताई स्टैटिस्टिक्स, वो बड़ी जैरिंग लग रही हैं आपको कि मतलब ये टू मच है, मतलब ये शायद कुछ गलती हो गई हो कैलकुलेशन में. लेकिन आपको उससे शॉक नहीं हो रहे क्योंकि आप सब उससे कहीं अफेक्टेड नहीं है. आपको लग रहा है ये सब बातें किसी और देश की हो रही है, हमारे यहाँ तो ऐसा है नहीं, सब लोग खुश हैं, सबकी हालत बड़ी अच्छी. अच्छा, कैपिटलिज्म ऐसा करता क्यों? उसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं. एक तो ये कि वी आर लल्ड, वी आर बॉट ओवर. एक्चुअली हमें खरीद लिया गया है. We are bought over. But why are we bought over? Why capitalism is so kind to us? It is kind to us because capitalism believes in consumption and overconsumption. जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो प्रोडक्शन पे बेस्ड होती है ना, उन्हें प्रोड्यूस करना है. जो रोज नई नई कार्स और जो रोज नए नए फोन्स और एसीज और ये सारे गैजेट्स आएंगे, वो कौन खरीदेगा? आप ही खरीदेंगे ना. अंबानी के घर में तो ऑलरेडी भरा हुआ है, उसे अब नहीं चाहिए, और वो खरीदेगा भी तो इंडिया की चीज थोड़ी खरीद के लगा रहा है. उसके पास तो गोल्ड प्लेटेड अमेरिका से आ रही है. समझ रहे? तो वो रिच पीपल को नहीं कुछ चाहिए. दे डोंट डू शॉपिंग इन इंडिया, यू नो, ऑन द स्ट्रीट्स एज वी डू. तो ये कैपिटलिज्म के अंदर जो कैपिटलिज्म चलता है, इसी पे प्रोडक्शन, मोर प्रोडक्शन, यूज एंड थ्रो, यूज मोर थिंग्स, बाय मोर थिंग्स. या अगला मॉडल और अगले मॉडल का फोन, अगले मॉडल की कार जो हम आप करते हैं ना रोज. तो ये चीज कौन खरीदेगा? हम ही तो खरीदेंगे. अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो कैपिटलिज्म रुक जाएगा, वो पीछे जाने लगेगा, उसके अंदर रिसेशन आ जाएगा इकोनॉमी में. इकोनॉमी चलेगी जब हम खरीदेंगे. ठीक है, हम तब खरीदेंगे जब हमारे पास पैसे होंगे. अगर हमारी तनख्वाह वही होगी जो जब मैंने नौकरी ज्वाइन की थी तो 2700 तनख्वाह थी लेक्चरर की. तो अब 2700 में तो लेक्चरर साइकिल ही सोच सकता है. लेकिन आजकल हम आप सब प्लान कर रहे हैं कि नहीं, ये वाली कार नहीं, ये वाली एसयूवी लेनी है और फलानी लेनी है और ये लेना है, इसलिए कि वी हैव द मनी एंड दैट्स व्हाट दे वांट. तो पूरी इकोनॉमी जो चलती है वो मिडिल क्लास से ही चलती है और उसके कंजम्पशन से चलती है.
तो देखिए डबल फायदा है कैपिटलिज्म का। एक तो यू आर बॉट ओवर, यू आर ऑल हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड, यू आर लल्ड इनटू साइलेंस, इनटू नॉट लिसनिंग व्हाट द वॉइसेस आर कमिंग फ्रॉम ऑल अराउंड। आप कान बंद कर लेते हैं जब ये सब डेटा बताया जाता है 45% अनएम्प्लॉयमेंट, आपको लगता है हमारी नौकरी तो ठीक है यार, ये बेकार की बातें लोग कर रहे हैं। अगर आप पॉलिटिकल हैं तो फौरन उसमें पार्टी देखने लगते हैं, किस पार्टी ने क्या कहा और किसने क्या नहीं कहा, बट वी डोंट लिसन टू दोस थिंग्स, यू नो दैट अच्छी न्यूज नहीं है। अखबार और टीवी भी इसकी बात नहीं करते, उनको तो फिल्म स्टार से और क्रिकेटर से फुर्सत ही नहीं है, तो किसी को उसकी बात नहीं करनी। सो द पॉइंट इज दैट दिस सिस्टम इज गेटिंग मोर एंट्रेंच्ड। ये सिस्टम की प्रॉब्लम ये कहीं रुकता नहीं, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं। आज ये कंडीशन ऐसी है, आज के 20 साल बाद इससे भी ज्यादा ग्रेव हो जाएगी। 20 साल बाद आपको डेटा कोई मिलेगा, अगर हम लोग हैं या नहीं रहेंगे, हम में से ज्यादातर लोग लेट्स होप रहेंगे, तो आपको डेटा मिलेगा कि 90% इंडिया की वेल्थ 1% के पास है। आज तो 73% ऑक्सफैम ने बताया, उस वक्त 90% हो जाएगी। मतलब वेल्थ कंसेंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि सिस्टम का नेचर है, दैट इज द नेचर ऑफ द सिस्टम। तो आज मशीन बनाते हैं, मशीन एक तरह से काम करती है, तो वही होगा मशीन में ना जो प्रोग्रामिंग है। इस मशीन में यही प्रोग्रामिंग ये पूरी दुनिया में हो रहा है, और कैपिटलिज्म पूरी दुनिया में कर रहा है, हमारे देश में भी हो रहा है। और उसका नतीजा यही कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ती जा रही है, जो पिरामिड का गर्त है नीचे की तरफ, वो बढ़ती चली जा रही है एवरी डे, व्हिच इज वेरी डेंजरस। दैट इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। Maybe it could be good for some political parties to exploit things for one day or the other day, but eventually in the longer run it is not good, because there is a point when these people are going to get so desperate that things will burst out, you know. मतलब वो चीजें मतलब बर्स्ट कर जाएंगी, सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। आज अगर कोलैप्स नहीं किया फॉर्चुनेटली, तो दिस इज द टाइम टू स्टॉप एंड थिंक। I'm talking about this because we middle class people need to think about it. And things are not very good, you know. Even if I am well placed, but that doesn't mean that things are well placed for the country. And unfortunately, our intellectuals and political class, they never talk about these things in terms of integration of the country. They talk about other things which are politically very useful for them. वो तो हर आदमी अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से उस इश्यू को उठाती है, हर पार्टी जो उसको लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, पता नहीं वो इंटीग्रेशन से रिलेटेड है नहीं। लेकिन ये कि ये इशू मैंने इसलिए फ्लैग किया क्योंकि मेरी समझ से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो बहुत ज्यादा उसके अंदर पोटेंशियल है डिसरप्शन क्रिएट करने का कंट्री के अंदर। सो दैट इज द रीजन व्हाई आई फाइंड दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली आई मेक अनदर पॉइंट बिफोर आई ओपन द फ्लोर फॉर योर कमेंट्स एंड क्वेश्चंस। जो मैंने पिछली बार पॉइंट उठाया था आपसे स्कैरसिटी का, और जो कॉन्फ्लिक्ट होती है, इनसिक्योरिटी हमारे दिमाग में, देखिए उसके पीछे जो चीज है वो है पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स को भी सही से समझने की जरूरत है। हम में से अक्सर लोग, फिर वही बात जो मैं पहले कह रहा था कि पॉलिटिक्स वर्ड हम समझते हैं, हम सबको पता है इसका मतलब, क्योंकि रोज हम यूज करते हैं। जिसकी बुराई करनी होती है उसके पीठ पीछे कह देते हैं कि मैडम बड़ी पॉलिटिशियन है। तो पॉलिटिक्स वर्ड इज ऑलवेज यूज एज अ पेजोरेटिव, एज अ नेगेटिव वर्ड। हम हमेशा उसको नेगेटिव सेंस में लेते हैं। फिर अगेन वही साइकोलॉजी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर से हट जाए, मतलब हम तो पॉलिटिशियन नहीं है, हमसे पॉलिटिक्स का मतलब नहीं, दूसरे लोग जिम्मेदार हैं। मतलब देश के हालात खराब है तो दूसरे लोग जिम्मेदार है, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बड़े अच्छे से पढ़ा के क्लास आ जाते हैं, and I am a very responsible citizen. So that is another way of putting responsibility of some other people. They could be partially responsible, but they are not wholly responsible. Now, what is politics? Politics is life. आप इसको ध्यान से सुनिएगा। Whatever I and you do from morning till evening, which affects the lives of other human beings, that is politics. Did you get my point? सुबह से शाम तक मैं और आप अपने घर के बाहर, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर जो कुछ भी करते हैं, बात समझ रहे हैं, और जिसका असर दूसरे की जिंदगी पे पड़ता है, क्योंकि जो भी हम करते हैं उसका असर दूसरे इंसान की जिंदगी पे पड़ता है, अच्छा या बुरा, वो पॉलिटिक्स है। मैं आपको और एग्जाम्पल, जरा थोड़ा एलिमेंट्री एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन मतलब दैट इज इंपॉर्टेंट। जैसे मैं कहूँगी साहब मैं तो दूध बेचता हूँ साहब, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं साहब, मैं तो सीधा दूध बेचता हूँ, लेकिन मेरे पास दोनों ऑप्शन है, प्योर दूध बेचूं या मिलावट का दूध बेचूं, दूध में पानी मिलाऊं या यूरिया मिलाऊं या कोई जहरीली चीज मिलाऊं। तो दोनों चीज जो मैं कर रहा हूँ वो वॉलंटरली कर रहा हूँ ना, गलती से नहीं हो रहा है। इट इज अ कॉन्शियस डिसीजन, मीन्स आई एम कॉन्शियसली डिसाइडिंग दैट आई हैव टू अफेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर पीपल नेगेटिवली, इवन इफ आई एम अर्निंग ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। मतलब किसी के बच्चे की जान चली जाए, मुझे थोड़ा पैसा मिल जाए, मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। अगर आप पढ़े लिखे, आप इंजीनियर हैं, तो आप जानबूझ के बालू का पुल बना रहे हैं ना। आपको पता है कि दिस ब्रिज माइट कोलैप्स, लॉट ऑफ पीपल माइट बी किल्ड, बट डेलिबरेटली यू आर डूइंग दैट। तो क्या है, आपके उस एक्शन का असर दूसरे इंसान की जिंदगी पे नेगेटिवली पड़ रहा है। उसी तरह आप अगर डॉक्टर हैं और बड़े ऑनेस्ट हैं, सबको अच्छे से देख रहे हैं, गलत टेस्ट नहीं लिख रहे हैं, गलत दवाएं नहीं लिख रहे हैं, सब काम सही कर रहे हैं, तो कितना अच्छा काम कर रहे हैं ना। तो आपको ऐसा नहीं कि इत्तेफाक से लोगों पे अच्छा असर पड़ रहा है,
आपको पता है अच्छा असर पड़ेगा और अच्छा असर पड़ रहा है। अगर मैं ईमानदारी से पढ़ा रही हूँ या पढ़ा रहा हूँ क्लास में तो अच्छा ही असर पड़ेगा, बुरा तो नहीं पड़ जाएगा। बस तो द पॉइंट बेसिकली इज दैट ऑल दीज एक्शंस आर डेलिबरेट। गलती की बात नहीं कर रहा हूँ कि मेरी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया, भाई वो तो एक्सीडेंट है ना, लेकिन मैं जानबूझ के किसी पे गाड़ी चला दूं, दोनों में बड़ा फर्क है ना। तो ये जानबूझ के गाड़ी चलाने वाली सिचुएशन है वेयर वी आर डूइंग थिंग्स डेलिबरेटली एंड दे आर रॉन्ग। नाउ वी ऑलवेज अक्यूज पीपल हु आर, कल तो हमने बहुत बुराई कर ली पॉलिटिकल पार्टीज की, तो आज अपनी भी बुराई करनी चाहिए, समझ रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज को इसलिए ज्यादा हम कहते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स को, मिनिस्टर्स को, चीफ मिनिस्टर्स या जो भी, क्योंकि उनके एक्शन का, बुरे एक्शन का असर ज्यादा लोगों पे पड़ जाता है, बिकॉज उनका एरिया एक्टिविटी बहुत बड़ा है। मैं अगर अपनी क्लास नहीं लूंगा तो 50 बच्चों का फ्यूचर खराब होगा। वो कोई मिनिस्टर अगर कोई गलत एक्शन कर लेगा और जानबूझ के गलत पुल बना देगा तो हजारों लोगों की जिंदगी पे बुरा असर पड़ जाएगा। बस सिर्फ स्केल का डिफरेंस है, डिफरेंस और कुछ नहीं। द ओनली डिफरेंस इज ऑफ स्केल, कि उनके गलत डिसीजन का, एक्शन का असर ज्यादा लोगों की लाइफ पर एक वक्त में पड़ जाएगा, अच्छा या बुरा, और हमारा स्केल छोटा है, लेकिन दोनों जिम्मेदार हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वी आर बोथ देयर इन द सेम बोट, वी आर ऑल इनटू पॉलिटिक्स। 24 आवर्स वी आर इनटू पॉलिटिक्स। सुबह जैसे ही हम घर से निकले, मेरा काम सड़क पे झाड़ू लगाना है, मैं सही से भी लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता हूँ, ऐसी ही तनख्वाह ले लूंगा, तो दोनों वो भी काम इंपॉर्टेंट। सो द पॉइंट इज दैट वी आर ऑल इनटू पॉलिटिक्स. So the point is that we need to understand and appreciate what does politics mean. We are all equally responsible for whatever is wrong in the country. अगर देश के हालात इंटीग्रेशन के लेवल पर अच्छे नहीं हैं तो हमारा, आपका, सबका रोल उसमें है, चाहे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी 0.001% हो और आपकी शायद 5% हो क्योंकि आप मिनिस्टर हैं कुछ, लेकिन सबकी है. We are all contributing to it. So the basic thing which probably we need to understand is that it is a collective endeavor. National integration can never happen if we put all the responsibility on political parties and leaders and say that they are failing us, that's why the country is failed. क्योंकि हम सोए घर में आराम से, उनकी गलती है, वो बुरे लोग हैं, खराब लोग हैं. अगर वो बुरे हैं तो हम भी बुरे हैं. जैसे मैंने पिछली बार डिस्कस किया था, भाई अगर कोई लीडर क्रिमिनल है, कोई अनफॉर्चुनेटली कोई इंसान, and we are selecting that person and electing that person and putting him in some responsible position, it is our fault, we are of that kind of a mindset. अगर हम सब के दिमाग में वो गंदगी नहीं होती, जो भी गंदगी वो लेके आ रहा है, तो हम उसको नहीं इलेक्ट करते ना. हम किसी अच्छे आदमी को, हमारे देश में आदमी की कमी तो नहीं है, there are so many good people, but since we are also of the same mindset, so the kind of intoxicant which is trying to feed us with, we are willingly accepting that intoxicant. वो हमारे सामने कास्ट का वायरस लेके आता है और हम उसको रेडली एक्सेप्ट करके उसको वोट देकर जिता देते हैं. ठीक है, तो वो आदमी आपसे झूठ नहीं बोला, वो वायरस ही बेचने आया है, वो वायरस बता रहा है मेरे पास है, आप कह रहे नहीं वायरस मुझे दो, मुझे चाहिए, तो ठीक है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब आप कल कहेंगे साहब वो तो उसकी गलती है, नहीं, आपकी भी गलती है ना. आपकी मतलब मेरी और आपकी सबकी गलती है ना. वी गो एंड डिलिबरेटली, कोई चोरी छुपे नहीं आ रहा ना, कोई रात के अंधेरे में ये काम नहीं हो रहा. इलेक्शन ओपनली होते हैं, पार्टीज रोज सामने हैं, सब आपको पता है, कोई गलती किसी से नहीं हो रही. हम सब डिलिबरेट मिस्टेक कर रहे हैं. हम जानते बूझते किसी वायरस से क्योंकि अफ्लिक्टेड हैं, इसलिए हम अपने सारे एक्शंस कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, लिंग्विज्म या करप्शन से प्रेरित होकर कर रहे हैं, और उसका कॉन्सिक्वेंस ये हो रहा है. दैट्स व्हाई वी आर टॉलरेटिंग इट एंड दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट इन आवर ओन स्मॉल वे. वो आदमी कोई बड़े गलत काम कर दे रहा है ऊपर की कुर्सी पे बैठ के मिनिस्टर, हम छोटे गलत काम यहाँ कर दे रहे हैं. हमसे नीचे का आदमी वो और छोटा गलत काम कर रहा है, लेकिन हम सब गलत चीज कर रहे हैं. तो ये कल्चर बन जाता है देश के अंदर कि ये चीजें एक्सेप्टेबल हो जाती है. The moment I go to a court here in my city and there is a person who is a tout who sits at the very gate of the court, and everybody knows it, judges are sitting there in that court, the district magistrate sits in that court, and that person is there for the last 20 years. So any of us civil society people, if we have any work in the court, we don't go inside the court, we just go to that tout and tell him this is the work and ask him for the money. Means we know that this is the wrong thing which is happening, and we are all patronizing that person. In fact, those administrative officers are also patronizing him because they know that he is doing this right at the head of the court. He's sitting there openly, in broad daylight. And that's how things are happening everywhere also, मैं तो एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आप सबका अपना एक्सपीरियंस होगा. हम जैसे ही जाते हैं उससे पूछते हैं इस काम के कितना खर्चा होगा. आप सबको पता है हर चीज का एक फॉर्म होता है, गवर्नमेंट की एक फीस होती है, कोई उससे फीस की बात नहीं कर रहा है, उससे बता रहा है कितना एक्सपेंस आएगा. मीन्स व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ब्राइब विच यू आर सपोज टू पे. सो people are willingly paying the bribe, others are taking the bribe. हम कहीं bribe पे करते हैं, फिर अपने ऑफिस में हम लेते हैं, फिर मैं आपको देता हूँ, आप इनको देती हैं. मतलब it's a cycle, and that is going on from top to bottom here. So when somebody comes in the newspaper, something comes in the newspaper saying that X is caught taking a bribe at X minister, हमारे sensibility पे कोई असर नहीं पड़ता.
हम शॉक नहीं होते, वो भी परेशान नहीं होता, उसको पता है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उसके सपोर्टर्स उस बात को ध्यान ही नहीं देंगे, क्योंकि उनको इससे मतलब ही नहीं कि वो चोर है कि नहीं। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। कितने देश में तो 1 मिनट के अंदर उस आदमी का पूरा कैरियर खत्म हो जाता है, उस चीज पे हमारे यहाँ कोई फर्क ही नहीं पड़ता, नोबडी टॉक्स अबाउट इट। लोग उसके डिफेंस में ऐसी बातें करते हैं, नहीं कोई छोटी मोटी गलतियां तो हो ही जाती, मतलब देश का 900 करोड़ रुपया लेकर आदमी देश की ऑफिशियल एयरलाइन में बैठ के देश से भाग जाएगा और आप एक जेब काट के अपने शहर के अंदर भाग नहीं पाएंगे, तो ऐसा कैसे हो जा रहा है? मीन्स सम पीपल आर इन्वॉल्व इन, कि एक आदमी देश का सारा पैसा लेके, मैंने एक भगोड़े का एग्जांपल दे रहा हूँ किसी एक का, नो नीड टू नेम, यू ऑल नो दोस पीपल। वो आदमी आता है, बैंक से पैसा लेता है, बैंक का पैसा लेके जहाज में, ऑफिशियल जहाज में बैठकर देश से चला जाता है, किसी को नहीं पता लगा। आप जरा भाग के दिखाइए अपने शहर से, कहीं नहीं भाग सकते आप। और आपने किया क्या था? बस एक कॉपी बदल दी थी किसी बच्चे के एग्जाम में, बस यही किया था, लेकिन आप नहीं भाग सकते, आपको हर तरह की एजेंसी कहीं ना कहीं पकड़ लेगी आप। तो द पॉइंट इज बेसिकली दैट वी आर ऑल कल्यूडिंग इनटू दिस, यू नो, दैट इज, मतलब दिस इज अगेन नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑन एनी वन पर्सन और पार्टी और एनीथिंग, दिस इज द सिस्टम व्हिच वी हैव क्रिएटेड, एंड देन वी विल टॉक अबाउट इंटीग्रेशन, एंड देन पॉलिटिकल लीडर्स विल सर्मनाइज अस ऑन इंटीग्रेशन। अब देखिए कितनी, और सबसे बड़ी बात हमारे देश में जो फॉर्मलिज्म मतलब हर चीज सरकारी पेपर पे आ जाती है। देयर इज अ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल which is headed by the prime minister, the ministers, chief ministers, सब लोग हैं for the last so many years, you know. Every year the National Integration Council will meet, these people will talk. It is all useless. There is no need to have a National Integration Council. It is something related to our everyday lives, you know. बात समझ रहे हैं? तो आपने 50-60 साल से कोई काउंसिल बना, मतलब क्योंकि फॉर्मलिज्म करना है, कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हैं साहब, हमारे यहाँ देखिए ये भी है, हमारे यहाँ करप्शन के अगेंस्ट एक ऑफिसर भी शहर में बैठा है, चाहे वो भी घूस ले रहा हो जो ऑफिसर है करप्शन वाला, लेकिन ये कि वो है, तो कल कोई बात पूछेगा तो आप कहेंगे साहब मैंने तो बना दिया है साहब, देयर इज एंटी करप्शन ऑफिसर देयर सिटिंग इन द यूनिवर्सिटी हु लुक्स एट करप्शन इश्यूज इन द यूनिवर्सिटी। सो द पॉइंट इज दैट देयर इज टू मच ऑफ फॉर्मलिज्म से क्या होता है, असली बात से ध्यान हट जाता है। जो कल हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की पिछली बार बात करते हैं ना, हमारे फॉर्मलिज्म, कोई बात होती है फॉरेन डिबेट, आप अक्सर अखबार में पढ़ते हैं ना साहब ये पावर गवर्नमेंट का है कि पार्लियामेंट का है, अब इस पर डिबेट शुरू हो जाए कि ये पावर सुप्रीम कोर्ट का है कि फलाने का है। मतलब वी गो टू मच आफ्टर द बुक, यू नो, वी आर नॉट गोइंग आफ्टर व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। अब आप अगर, मैं अक्सर अपने बच्चों को एग्जांपल देता हूं कि अगर ब्रिटेन के अंदर ऐसा हुआ, हमारे जैसे लोग हों, तो वहां पे कहीं लिखा नहीं हुआ है कि द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी विल बी द प्राइम मिनिस्टर। वहां तो इलेक्शन होगा, फिर अगले दिन केस हो जाएगा, ये साहब कैसे प्राइम मिनिस्टर बनना है साहब, कहीं लिखा तो है नहीं कि इनको बनना है। हमारे यहाँ तो फॉरन इस पे आता थी, ये चीज लिखी कहाँ है साहब? अरे यार लिखने की जरूरत नहीं है हर चीज को, वी आर well educated people, you know, adults, we understand democracy is an idea which you have to live, you know. It's not something which should be written in a constitution and every day you go and look at the book, you know, what is right. बस समझ रहे हैं, आप समाज में रह रहे होते हैं तो आपको अपनी जिंदगी में क्या चीजें सही है क्या गलत है आपका दिल खुद बता रहा है ना आपको कहीं किताब देखने की जरूरत थोड़ी है कि ये काम अच्छा है बुरा है, आप सबको मालूम है। ये बात अलग है हम गलत करें, बट वी ऑल नो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। Similarly, in political morality, we all know what is right and wrong, but political parties and leaders will fight and quibble amongst themselves for these small things, you know. This article में ये लिखा है, ये तो इसका ये पावर है, उसका है कि नहीं, और हम सब उसी डिबेट में एनग्रॉस हो जाते हैं, उसी पे लगे रहते हैं साहब। अच्छा हमारा लीडर जीत गया इस डिबेट में, उसने जो आर्गुमेंट दिया तो बहुत ही बढ़िया आर्गुमेंट। एक्चुअली इट इज ऑल, यू नो, टू befool us, you know. It is all a fraud. There is no need to discuss those things. The thing is to act on those things. बस समझ, उन चीजों पर एक्ट करने की जरूरत है। ये दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है और सबसे ज्यादा डिस्प्यूट हमारे यहाँ होते हैं कि कौन सी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है कौन नहीं। ब्रिटेन में कुछ नहीं लिखा आज तक, आपने कभी पढ़ा के बाद डिस्प्यूट हो गया ये बात तो लिखी नहीं साहब, आप कैसे कर सकते हैं? क्योंकि सब लोग जान रहे हैं, हर आदमी समझ रहा है ना लिखने की जरूरत क्या है। जो वैल्यूज हमने पढ़ी है सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, वो वहां कहीं लिखी नहीं हुई। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखी थी, हमने बाद में लिख भी दी, तो लिखने से कोई फर्क पड़ गया क्या? अगर हम सब एक टी शर्ट पहन के सड़क पे निकले कि वी ऑल लव इंडिया, जो हमारे अक्सर होता है, तो विल यू स्टार्ट लविंग द कंट्री इन द रियल सेंस? लव इज देयर इनसाइड यू, एंड योर लव फॉर द कंट्री इज रिफ्लेक्टेड इफ यू डू योर वर्क ऑनेस्टली। अगर मैं स्वीपर हूं सड़क पे और मैं रोज सुबह शाम ईमानदारी से अपना काम सड़क साफ करने का कर रहा हूं, तो मुझसे ज्यादा देश से कोई प्यार नहीं करता। और अगर मैं सड़क पे खड़ा होकर पार्लियामेंट हाउस के बाहर चिल्ला रहा हूं आई लव माई कंट्री और मैंने 2000 करोड़ रुपए की बैग ले रखा है, तो वो फ्रॉड है ना, मतलब उसकी कोई अहमियत है? आप बताइए। तो वो इट्स ऑल एम्प्टी वर्ड्स। तो हम लोग इसी चीज पे ज्यादा जाते हैं कि मतलब कौन आदमी क्या कह रहा है,
उसने ये कह दिया, उसने उसके अगेंस्ट कह दिया. That is not important. What is important is the action. So democracy is something which has to be lived, and politics tells you how to live it. So politics is not a bad word; it is a good word. Next time, don't use it as a pejorative. Don't use it as something whereby you accuse someone of being a politician. Somebody could be a very good politician. Politics is a very beautiful thing. It is equally ugly also. If you can use politics for something good for the people, it is very beautiful. Are you getting my point? So the important thing is to understand the right meaning or the essence of this concept and to live it in the real sense. And believe me, this is a very contagious thing. ये एक बड़ी contagious चीज है. ये spread करती है. अगर हम सब या हम में से बहुत से लोग उस पॉजिटिविटी को लेकर और उसको लिव करें, इस दूसरों तक भी जाती है. और अगर हम सब बैकफुट पे आ गए, अपना सोच लिया कि सब कुछ तो होना नहीं है, सब कर रहे हैं, हम भी करते हैं इसको, so nothing is going to change. So the point basically which I wanted to make is that national integration is something which has to start from me, not you, but me. Because the moment I say you, it means that I'm all fine and responsibility is on you. So it starts with me. Charity begins at home. We need to set example for ourselves. मुझे अपनी नजरों में नहीं गिरना है. मुझे अपनी नजरों में सही इंसान, सही सिटीजन भारत का बनना है. हो सकता है मुझे देखकर या न देखते हुए भी दूसरे लोग भी उस चीज को इम्यूलेट करें, उस अच्छी चीज को फॉलो करें, और धीरे धीरे जो है 1+1+1 things might start changing. So there are a lot of roadblocks, there are a lot of issues जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, communalism, casteism, all kinds of things, disparity, all things, but the positivity is nowhere. Negative forces are moving together. Positivity can only start with individual citizens. If you start believing that political parties or leaders would change, they will never change because they are benefiting from the system. थर्ड वर्ल्ड कंट्री में डेमोक्रेसी लीडर्स के लिए उससे अच्छी कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि कहने को डेमोक्रेसी आप रह रहे हैं बादशाह की तरह. जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है वहां तो डेमोक्रेसी में पूरा चेक है ना, जनता चेक कर रही, जरा से गड़बड़ हुआ तो आपको हटना पड़ेगा. यहाँ पे कोई मसला ही नहीं है, आपने सबको इंटॉक्सिकेशन दे रखा है, जनता मस्त है, कोई परेशानी नहीं है. कहने को डेमोक्रेसी है लेकिन एक्चुअली देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी. हैव यू एवर हर्ड इन योर लाइफ ऑफ 40-50 years, whatever it is, that people asking any question from any leader who is sitting on any chair? Never ever. We never ask questions. So they are very happy. So why will they want to change the system? मैं भी वहां हूं तो मैं भी नहीं चेंज करना चाहूंगा. घर बैठ के बगैर क्लास दिए अगर हर महीने तनख्वाह बैंक में आ रही है तो जरूरत क्या है पढ़ाने की? तो they are happy. So it is the people who have to change, because as I mentioned last time also, we are the biggest stakeholders in this game. We are being negatively affected. We are citizens of the country. They are also citizens, but we are the real stakeholders being on the other side of the fence. So we need to understand this and try to start bringing that change from, in a very small and humble way, from in our own lives. The target should be only my life, not you. मुझे आपको नहीं सुधारना है, खुद को सुधारना है. आप खुद समझदार हैं, आप अपने को खुद सुधार लें. लेकिन हम लोग यूजुअली दूसरे को सुधारना चाहते हैं. When we sit as teachers, we talk about the chairman of the department. When the chairman will sit, they'll talk about the deans. The deans will talk about the vice chancellors, and they'll talk about the ministers and so on. कि फलां लोग वो ठीक नहीं कर रहे हैं, तो हम हमेशा दूसरे के बारे में बात करते हैं. बच्चे, हम लोग टीचरों के बारे में बात करते हैं, अच्छा नहीं पढ़ाते हैं. हम बच्चों के बारे में बात करते हैं, बच्चे सीरियस नहीं. तो we are always given to talking about others, but we need to talk about ourselves. As a nation, that needs change. वो हमारे कल्चर में, थिंकिंग में अगर चेंज आएगा तो आई होप दैट थिंग्स माइट चेंज फॉर द बेटर टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट. मैं इस पे जरा रुकता हूँ आपको क्योंकि सर, आई हैव अ क्वेश्चन. जी प्लीज बोलिए. Sir, how important do you think such terms are in today's scenario, and what you especially talked about, like hospitality, tolerance, mutual cooperation, and reaching out to the other, and more precisely to solve the economic disparity which you rightly talked about and which you rightly discussed, and especially on the part of the middle class population who are sort of kind of empowered, and if they develop the culture of mutual cooperation and reaching out to the section of people who are not so privileged, then can we probably address these issues
more in a more effective way, as probably Rabindranath Tagore would have discussed in his book Nationalism. Here it reminds me of Rabindranath Tagore's Nationalism, where he has talked about how we can develop a culture of mutual coordination among the nations. In fact, it's not about national integration, but he takes it a step further when he talks about the how the nations can develop coordination among each other through a tolerable and hospitable culture. So can we practice it here while talking about the national integration policy? So that would be my question. Yes, Dibba Brato Saab, I think you are very right. And because, Rabindranath Tagore was an internationalist, उनका तो बहुत ही ब्रॉड विजन था, तो वो तो पूरी दुनिया के लेवल पर वो बात अभी छोड़ के भी हम सिर्फ अपने देश के लेवल पर लाते हैं. यू वेरी राइट. जो देखिए ऐसा है, हमको टॉलरेंस से भी आगे की चीज चाहिए. एक्चुअली टॉलरेंस कॉन्सेप्ट इज मिसअंडरस्टूड इन इंडिया वेरी मच. हम टॉलरेंस किसको समझते हैं कि मतलब टॉलरेंस इज एक्चुअली समथिंग विच इज पेनफुल. जैसे आप किसी ट्रेन में जा रहे हैं, 4 लोगों की जगह है, हम 4 लोग बैठे हुए हैं, कोई एक 5वां भी आ गया तो उसको हम टॉलरेट कर लेते हैं. मतलब वी आर ऑल inconvenienced because of the presence of the 5th person, but since we are educated people, हमने कहा वो भी कोई टीचर ही है, उसको बैठा लिया हमने बगल में. But we are not feeling happy by helping that co-worker of ours. तो हमारे हिंदुस्तान में अच्छी बात है कि हमारे पास हर चीज़ का एक कोनोटेशन अलग है डिक्शनरी से. हमने अपना बना रखा है. जैसे पॉलिटिक्स हमने कहा ना, वो हर चीज़ का हमारा मतलब अपना है, वही मतलब हम समझ रहे हैं उस वर्ड से. तो हम उसको कहते हैं टॉलरेंस. टॉलरेंस इज नॉट the right thing for us. We need to celebrate, celebrate difference का मतलब होता है when you come with me, I feel enriched by the presence of so many languages in the country. I am not taking it as a divisive issue. I am taking it as a positive issue. It is positivity in my country that we are privileged to have so many languages which many people don't have. Rather than thinking that these languages are the obstacles and we live in the Hindi belt, so everybody should embrace it, because we are the stronger people. So your languages are unimportant and they are not so rich culturally, so please accept what we are giving you. So the point is that tolerance is not required, celebration is required. We need to celebrate the difference. When that will happen, we will become more large-hearted and we will not feel inconvenienced by the presence of जो द अदर वाला वर्ड वो यूज करते हैं ना, पिछली बार हमने डिस्कस किया था. क्योंकि अदर वाला वर्ड जो है वो बहुत ही इट क्रिएट्स अ डिस्टेंस. जो आजकल सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है ना, इट क्रिएट्स सोशल डिस्टेंस. यू डोंट नीड टू क्रिएट सोशल डिस्टेंस, वी नीड टू क्रिएट सोशल प्रॉक्सिमिटी. You belong to my own family, so why is the talk of that social distance? We are all one, and your diversity enriches us. So that the real meaning of multiculturalism, जो उसका एसेंस है, multiculturalism does not talk about tolerance. It talks about celebrating the difference, being happy with the difference, thinking that difference is something which is value addition. और दूसरी बात जो सर ने ऐड की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मिडिल क्लास को ही सोचना है, क्योंकि रिच क्लास कभी नहीं सोचेगा. रिच क्लास नोज दैट दिस इज दी, जिसको कहते हैं ना, कोलैटरल डैमेज ऑफ माई रिचनेस. जो मुल्क के सबसे अमीर लोग हैं किसी भी मुल्क को, उनको पता है कि जब हम इतने अमीर होंगे तो इतने लोग गरीब होने हैं. मतलब that is bound to happen. They don't have any sympathy. If they were sympathetic, they would not behave the way they behave. Any country of the world, capitalist people are like that. It is only the middle classes who can empathize because we are close to them. We interact with them on a daily basis. In all your houses, 1 or 2 people would every day be coming as maids and drivers or other kinds of people who would be very poor, and you are interacting with them every day. So that sympathy, that empathy rather, can come in the middle classes only, and they need to be more sensitive to the requirements of the poor people and come close to them, क्योंकि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं या उनके जो इश्यूज हैं उनको हम ही आप ज्यादा समझ सकते हैं, क्योंकि हम उससे जस्ट ऊपर वाले क्लास में. शायद गरीब अमीर आदमी तो समझ ही नहीं सके ना. जो फ्रांस की क्वीन थी ना, when she was told that there is no bread for people and people are rioting in the streets of Paris for bread, तो उसने कहा कि लोगों को केक खा लेना चाहिए, क्योंकि क्वीन समझ ही नहीं पाई कि जब ब्रेड नहीं है तो केक कहाँ से होगी. केक तो उससे महंगी चीज़ है, उसको तो लगा कि खाने की 2 चीज़ें, ये नहीं तो ये खा लो. लेकिन हम आप ये गलती कभी नहीं करेंगे.
हमें पता है कि इंसान के पास जब रोटी नहीं है तो उसके ऊपर की कोई चीज नहीं होगी। हम कहेंगे बिस्किट खा लो, हम कभी नहीं कहेंगे, ये तो अमीर आदमी ही कह सकता है। तो हम इतने ज्यादा सिंपैथेटिक हो सकते हैं क्योंकि हम उस चीज को समझते हैं। तो वी नीड टू बी सेंसिटिव, यू नो, दे आर आवर कंट्रीमैन, इट इज जस्ट incidental that I am in a job and getting good salary, we and you, and some of our countrymen is a daily wage worker getting just 400 rupees every day. It is just incidental, it's just plain luck, you know. So we need to understand that the places can be traded anytime. So Sir, I want to ask. yes, please, Lakshmi ma'am. Sir, I want to talk about capitalism. Though you didn't want to talk about government compulsion, but we all know that government is in support of capitalism. Actually, you know, nowadays what happened, India is attuned to free market ideas. We all know, but I want to say that in a disguised form, we general people also are in favor of capitalism. You know what happened if you look at our educational sector. In India nowadays, education has become a great business, and people or guardian tend to send their children only to their private sector school. So on the other hand, there are so many government school also, but we are not interested to send our children to those kind of schools now. So we are also in support of capitalism, sir. So in this way, how can we be free from this kind of thinking, you know, sir? This is my outlook. देखिए, Yeah. कैपिटलिज्म जो है ना, वो कैपिटलिज्म का सेशन नहीं है एक्चुअली, तो मैं उस पर ज़्यादा डिटेल में, देखिए कैपिटलिज्म बड़ा, मतलब इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग, यू नो, दे प्ले अ लॉन्ग गेम। एक लॉन्ग गेम होता है ना, टेनिस जो चेस का होता है, आनंद जो है 1 घंटे तक घुमाता रहेगा, फिर हरा देगा लास्ट में आपको। तो वो अपने चेस मूव्स कर रहा है, उसको पता है कहाँ जाना है, हम जल्दी में हैं और फौरन हार जाएंगे उससे। तो द पॉइंट बेसिकली इज दैट दे नो, यू नो, तो देयर इज अ डेलिबरेट। अब आप अगर सोचें अपने बचपन के बारे में, जहाँ भी आपका घर है, जब आप बच्चे रहे होंगे या, तो हर के शहरों में ठीक ठाक से सरकारी स्कूल थे, ठीक है। आज कहीं भी सरकारी स्कूल अच्छे नहीं है। दिल्ली की गवर्नमेंट ने, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट, मैं एक एग्जांपल देना, उन्होंने उसको प्रायोरिटी दिया, एजुकेशन को, बजट को बढ़ाया, और दिल्ली में सरकारी स्कूल काफी अच्छे हो गए, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो पूरे हिंदुस्तान में क्या किया गया, सारी सरकारों ने मिलकर, जितनी स्टेट गवर्नमेंट, सबने मिलकर डेलिबरेटली उसको किल किया। मतलब जब सरकारी स्कूल एकदम खराब हो जाएगा तो आप अपने बच्चे को भेजेंगे नहीं, अगर आपके पास पैसा, ऑब्वियसली मैं नहीं भेज रहा हूँ, आप नहीं भेज रहे हैं, कोई नहीं भेज रहा है प्राइवेट। तो क्या होता है, सिस्टम उस चीज को खराब करता है डेलिबरेटली। दूसरी चीज को अट्रैक्टिव बनाया, आप उस स्कूल में जाएं। अब क्या हो रहा है देखिए, अब पब्लिक यूनिवर्सिटीज जो बड़ी अच्छी इंडिया की, मैं भी एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में, आप सब होंगे। अब आगे क्या होने जा रहा है, अगले 20 साल में क्या होगा कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज की फंडिंग कम होती जाएगी। अब नई एजुकेशन पॉलिसी में सारी बाहर की यूनिवर्सिटीज कुछ आ गई हैं और आ रही हैं। वो यूनिवर्सिटीज बड़ी ग्लैमरस होंगी, उनके यहाँ बड़ा अट्रैक्शन होगा, क्योंकि फीस भी बहुत होगी। फीस जाहिर सी बात, हम आप जैसे लोग जिनके पास पैसे हैं वो अपने बच्चों को वहाँ भेज पाएंगे। पब्लिक यूनिवर्सिटीज अपने आप, भाई जब आप पैसा रोक देंगे अपने आप ही मर जाएंगे ना, जैसे सरकारी स्कूल को रोक दी। हर शहर में, मैं जिस छोटे शहर पे आ रहा हूँ, हमारे यहाँ एक सरकारी स्कूल मेरे घर के पास है, उस पूरे स्कूल में एक टीचर बचा। तो वो चीज कैसे हुई, 20 सालों में हुई। धीरे धीरे जितने टीचर रिटायर होते गए, गवर्नमेंट ने उन टीचर्स की जगह दूसरे टीचर अपॉइंट नहीं किए, कोई पैसे नहीं दिए, फंडिंग नहीं दी, वो स्कूल धीरे धीरे खत्म होकर एक टूटी बिल्डिंग में आ गया। वो हर स्टेट का यही कहानी। तो द पॉइंट इज दैट सिस्टम वाज डेलिबरेटली स्पॉइल्ड. The government hospitals were deliberately spoiled because how could these rich hospitals earn so much of money? Are you getting my point? Public health system को हमारे हर साल के बजट में, फिर भी मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले 20 साल में आप अगर बजट उठा के देखें तो 1% के आसपास हेल्थ और एजुकेशन का एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट। 1986 में एजुकेशन पॉलिसी थी, वो भी कह रही थी कि जीडीपी में 6% हम बढ़ा देंगे एजुकेशन सेक्टर में, आज तक नहीं बढ़ा, किसी को बढ़ाने नहीं। तो पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ में पैसा नहीं बढ़ेगा। इतना बड़ा क्राइसिस मुल्क के अंदर आ गया। अब आप कहेंगे गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाया, तो दूसरों ने भी तो नहीं कहा कि बढ़ा दो। If the government in the budget did not increase the allocation for health, the others also never said anything because nobody wants it. जो मैंने पिछली बार कहा ना, they are all colluding into this. Nobody wants this. क्यों? क्योंकि उनके सब क्लाइंट्स वो हैं, बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े हॉस्पिटल चला रहे हैं, जो 5 स्टार होटल्स की तरह हैं, छोटे वाले 3 स्टार होटल की तरह हैं, और छोटे शहरों में थोड़े और अच्छे होटल की तरह हैं। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जब तक डेड नहीं होंगे तब तक वो कैसे बिजनेस करेंगे? अगर सरकारी हॉस्पिटल अच्छे होंगे तो उनका बिजनेस नहीं चलेगा। तो ये डेलिबरेट सिस्टम होता है कैपिटलिस्ट मॉडल में कि इस सिस्टम को खत्म करना। जैसे अमेरिका में भी एक जमाने में पब्लिक हेल्थ अच्छी खासी थी, लेकिन उन्होंने डेलिबरेटली पब्लिक हॉस्पिटल्स को किनारे करते 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 अब पूरी तरह से हेल्थ प्राइवेट सेक्टर के अंदर हाथ में है। खैर वो तो कैपिटलिस्ट कंट्री भी है आइडियली। सो द पॉइंट बेसिकली इज दैट इज व्हाट दे डू, यू नो, कि इस चीज पे आपने पैसा कम कर दिया, चीज खराब हो गई।
वो धीरे धीरे कम करते करते आपने उसको डेट कर दिया, दूसरी चीज प्रॉस्पर कर रही है. तो इन ऑल फील्ड्स प्राइवेट सेक्टर विल प्रॉस्पर बिकॉज दे विल बी गिवन ऑल द फैसिलिटीज बाय द सिस्टम, not by the government. I am not talking about the government system, which privileges the private sector, and therefore the government sector goes down, and they are slowly and gradually killed. तो यही तो परेशानी है इसकी. Madam Priyanka was asking something. Priyanka Mishra had raised her hand. अगर आप हैं तो पूछें कुछ. जी मैम, कुछ आप पूछ रही थी मैडम प्रियंका, या किसी और को पूछना तो पूछ लें, वो शायद मैडम. सर अस्सलाम वालेकुम सर. जी 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 बोलिए. सर मैं यही पूछ रहा था कि जैसे नेशनल इंटीग्रेशन है और मल्टीकल्चरलिज्म, ये क्या रीजन स्पेसिफिक टर्म्स हैं? जैसे कि इधर यूरोपियन कंट्रीज में मल्टीकल्चरलिज्म का ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इधर एशियन कंट्रीज में नेशनल इंटीग्रेशन. नहीं, आई गॉट योर क्वेश्चन. देखिए ऐसा है, मैं क्लैरिफाई कर दूं. एक्चुअली ये दोनों सिनोनिमस टर्म्स नहीं है, इंटरचेंजेबल टर्म्स नहीं, दोनों अलग अलग चीजें. नेशनल इंटीग्रेशन मींस इंटीग्रेशन इन द कंट्री इन ऑल मैटर्स. मल्टीकल्चरलिज्म इज बेसिकली टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइनॉरिटीज, linguistic minority, religious minority, ethnic minority, that they should be living together as one, you know. जो हमने अभी कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेटिव कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, मतलब शेयरिंग का, केयरिंग का, एक दूसरे को सेलिब्रेट करने का, वो मल्टीकल्चरल सोसाइटी इज डाइवर्स सोसाइटी विद ऑल द डाइवर्सिटीज बट स्टिल यूनाइटेड, वो मल्टीकल्चरलिज्म. नेशनल इंटीग्रेशन एक ओवर आर्चिंग कंसेप्ट है जो हर चीज को मतलब अपने में एम्ब्रेस करता है कि हर एस्पेक्ट में पूरा नेशन यूनाइटेड हो एट ऑल लेवल्स, एट ऑल रादर लेयर्स. यस, एनीबॉडी एल्स हैज एनीथिंग टू? सर मैं एक सबसे पहले तो आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ. आप वाकई जादूगर हैं. आपने 1 घंटे तक उस दिन भी ऐसे हमें बांधे रखा, और कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं, कोई इस तरह की चीज नहीं है, लेकिन आपके शब्दों में वो एक कशिश है जो बांध देती है सुनने वाले को. और सिर्फ कशिश ही नहीं है, उसके अलावा उसमें बहुत से ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमारे जो दिमाग की सफाई करते हैं. तो ये बहुत अच्छा, आपका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सर, आपने ये समय दिया. और हम तो चाहेंगे कि आप जैसे कैपिटलिज्म पे कह रहे हैं तो एक सेशन और हमारा लें आप. और चलिए ऐसा होगा तो मैं उसी पे बात करूंगा, कैपिटलिज्म के एक नए एस्पेक्ट पे जो यूजुअली, मतलब एक्चुअली देखिए ऐसा है कि मतलब थैंक यू फॉर योर नाइस वर्ड्स. मैं एक्चुअली कोशिश ये करता हूँ कि सिंस आई एम टॉकिंग टू टीचर्स, so I don't want to talk about the run of the mill things, you know. कोई ऐसी चीज हो जो थोड़ा सा हमें एनर्जाइज करे, थोड़ा इंटरेस्ट करे कि बात करने में कुछ, मतलब टीचर्स को तो पढ़ाना नहीं है ना, हम सब कलीग्स हैं, तो ऐसी बातचीत हो कि थोड़ा सा एंगेजिंग हो, जिससे थोड़ा सा कुछ चीज इंटरेस्टिंग आए सामने. बट दैट्स व्हाट द एफर्ट इज. आई होप दैट इट रीचेस टू इट्स फ्रूशन. यस, एनीबॉडी एल्स? जी सर, आई वांट टू से समथिंग सर. एक चीज और जो अभी उठाई थी लक्ष्मी मैम ने, आपने भी कहा था, वो उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि जो एजुकेशन सिस्टम, जो आपने कहा था कि हमारे टाइम में जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे, आजकल हमने क्या किया है कि लोगों को एक हिस्सों में बांट दिया है. गवर्नमेंट स्कूल में जाओ तो अलग क्लास नजर आएगी, एक हमारे गली मोहल्ले में प्राइवेट स्कूल है उसमें अलग क्लास नजर आएगी, कुछ नामी स्कूल है उनमें अलग आएगी, दून एकेडमी में चले जाओ, बड़े बड़े नामी ग्रामी इंस्टीट्यूट में जाओगे तो हमें सोशली भी बांट दिया है, अलग अलग हिस्सों में हमें बांट दिया है. ये तो अच्छा गेम है सामने, जितना आप बटे रहेंगे उतना उनके लिए अच्छा है. तो लोगों को पीसेस में बांट दिया जाए तभी हम हुकूमत अच्छी तरह कर सकते हैं. अगर आप सब यूनाइट हो जाएंगे तो हमारे लिए खतरा है. तो वो यूनाइट नहीं होना है, आपको बटे रहना है, वही अच्छा है. सो फॉर पावर्स दैट बी इन एनी फील्ड, यू नो, दैट इज द बेस्ट बेट. पवित्रा मंडल साहब कुछ कहिए. जी प्लीज. Yes sir, yes sir. Sir, like the previous day, this session is also, I mean, excellent session. I want to say one thing is that that economic disparity that is growing day by day. So now around 80% of the wealth is concentrated among the only 1% Amir Admis in India. And you are saying that maybe after 20 years, maybe 90% of the wealth will go to 1% of it is. So we are adding to a very dangerous situation. From your lecture, we realize that we are going to a very dangerous situation, and this will destabilize the society. And the middle class family, if you are talking about that, the middle class family are the most privileged section and the most targeted section of the capitalism. But the middle class family will never come out of the comfort zone. I will not come out from my comfort zone.
I will not come out of my comfort zone, and the middle class family will never come out of the comfort zone. So, what is the solution? I mean, I feel that there is no solution. After 50 years, maybe, when the pyramid of the base of the pyramid will increase drastically, will increase up to a certain extent, that there will be some revolution, and that will almost destroy this capitalism. I mean, the concept of capitalism, maybe some sort of new kind of thing will come, and the thing will settle. That is my what I feel actually from the lecture. What is your opinion, sir? I just wanted two things in this context. One, I talked about this because I wanted to flag this issue because it is getting unflagged. Nobody is talking about this. तो एक होता है ना, जैसे आगे एक्सीडेंट हो सकता है तो सड़क पे एक बोर्ड लगा दिया कि भाई इधर गाड़ी धीरे चलाओ, आगे गड्ढा है. तो मैं बस वो काम कर रहा था पहले दिन. और दूसरी बात ये है कि मैं ये चाहता, मेरी ये सोच है कि हम सब क्योंकि मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, टीचर्स हैं, कि कम से कम हम उस दर्द को एटलीस्ट महसूस करें. आई डोंट वांट दैट वी शुड यूनाइट एंड क्रिएट अ रेवोल्यूशन इन द कंट्री, यू नो, दैट्स नॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड. बट एटलीस्ट जो अभी अधिकारी साहब ने भी बात कही थी कि मतलब हम अपने कॉन्शियंस को थोड़ा सा उभारे हैं. ठीक है, मिडिल क्लास कॉम्प्लेसेंट होता है, पता है हर जगह होता है और उसको सब चीज़ें सही मिल रही, वो अपने एप्पल कार्ट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता. अच्छी सी लाइफ चल रही, भी बच्चे हैं, क्यों डिस्टर्ब करें. ठीक है, फाइन, बट वी आर प्रोवाइडेड फॉर मच मोर देन व्हाट वी शुड बी अदरवाइज प्रोवाइडेड. जो मैंने पहले कहा, इन अ कंट्री लाइक इंडिया हमारे पास बहुत कुछ एक्स्ट्रा है. हम अगर उनके दर्द को महसूस करेंगे, गरीबों के, अपने भाइयों बहनों के, जो हमारे देश के हैं, पड़ोसी देश की बात नहीं होती, तो हम कुछ कर सकते हैं, कुछ उनके पेन को एमेलियरेट कर सकते हैं, कुछ उनकी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को कम कर सकते हैं और हमारे पर कोई असर नहीं पड़ेगा. लेकिन वो तब होगा जब हम उसकी पड़ोस, अपने भाई की तकलीफ को महसूस करेंगे. तो मसला सिर्फ ये है कि उस चीज़ को महसूस करने की ज़रूरत है. हम अपने मतलब आइवरी टावर में बैठे बंद कमरे में हम सोचें एसी हमारे घर में चल रहा है तो जाहिर सी बात है सब जगह चल ही रहा होगा, एटलीस्ट पंखा तो चल रहा होगा. लेकिन शायद पड़ोसी के पास घर ही नहीं है, पंखा कहाँ लगाएगा बेचारा. तो वो मतलब मैं वो चाह रहा था कि वो हम चीज़ में अगर करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है. आई डोंट वांट टू साउंड दैट आई एम pontificating, you know, I am someone very great. I am like you know, we are all at the same level, but I am just trying to think aloud. मैं बात कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि मेरे दिल की ये बात है, आप सब सुन रहे हैं तो अच्छी बात है. Yes, if this happens, that there is nothing like it. If this happens and the things changes, but I mean, I am little bit, you know, I think this thing may not happen like this. It sounds very pretty. It sounds very beautiful. That if we can think of others, I mean, the middle class family can think of others, and the things will change. But it is, I feel it is difficult, sir. I am not optimistic about this thing. I maybe it's my personal opinion, sir. Thank you. That's fine, thank you. Anybody, one last question? Sir, I have one observation. Sir, thank you for your nice lecture. Sir, you have very rightly put that we don't talk about economic disparity, and people, and according to my observation, that people in our country are full with the GDP estimates. We don't talk about HDI. We don't talk about inequality adjusted measures. We don't talk about all those. We only see the GDP pictures, and I think the people are made fool of those GDP pictures, because GDP pictures can't make estimate of the disparities, economic disparities. So, thank you for your nice lecture. Yes, sir. Next, some other time, you know, we can talk in detail about these issues with Madam Grace. But anyway, fine. So, can I ask one? Gigi, please. Yeah. Sir, in most of the European countries also, they endorse capitalism. But if you look at those countries, the government has a social face. Like if you go to Germany or France, the treatment is free and everything is same cost available to all society. But in India, we had that kind of education system, or you call the health system, but we are destroying it. Why these two kinds of face of capitalism in different parts of the world? Could you explain, please? Very right, you know. I'm sorry that this will be the last question because I have another meeting after this. So I'll end it after this, after I respond to Debajyoti Saab. It's a very important thing. देखिए मैं इसीलिए कह रहा था आपसे, अफसोस की बात है कि we had a very strong, मतलब I'm not for socialism, but socialism has very good things. India had a very nice base till 1990, but we changed our course through a U-turn. हमने एक U-turn ले लिया, हमें U-turn नहीं लेना था.
जैसे यूरोपियन कंट्रीज तो बेसिकली कैपिटलिस्ट हैं जो आपने जिक्र किया, बट देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोशल डेमोक्रेटिक फैक्शन इन ऑल कंट्रीज, इन ऑलमोस्ट ऑल यूरोपियन कंट्रीज सोशल डेमोक्रेट्स का बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है। इसकी वजह से उन सारे कंट्रीज में, ज्यादातर कंट्रीज में बड़ी स्ट्रॉन्ग सोशलिस्ट पॉलिसीज है। जैसे ब्रिटेन में भी नेशनल हेल्थ सिस्टम है, ऑल हेल्थ इज फ्री, यू नो। इन जर्मनी में एजुकेशन तो खैर ज्यादातर जगह फ्री है यूरोपियन कंट्रीज में, मतलब उनके यहाँ बड़ा स्ट्रॉन्ग सोशलिस्ट बेसिस, क्योंकि उन्होंने दोनों को लेके चला। दे आर कैपिटलिस्ट कंट्रीज बाय बर्थ। कैपिटलिज्म स्टार्टेड इन यूरोप, नॉट इन अमेरिका, बट अमेरिका ने लिया ना एक फुल कैपिटलिस्ट मॉडल, मतलब अनइनहिबिटेड कैपिटलिज्म, एंड दैट हैज लेड टू, that will lead them to great disaster in the times to come. We imitated them. Imitation is always necessarily bad. नकल हमेशा बुरी ही चीज होती है। नकल के साथ अकल जरूरी है। अगर मैं ब्लाइंडली पड़ोस के आदमी की कॉपी से नकल करूंगा अधिकारी साहब की, तो शायद 5 नंबर मिल जाते, लेकिन इनकी कॉपी के बाद 0 मिल गया, पता लगा वो भी गलत हो गया। तो अपनी अकल लगाते तो शायद कुछ नंबर मिलते। तो वो इशू है कि पता हमने वो ब्लाइंड इमिटेशन किया, दैट वी शुड नॉट हैव डन। I'm not questioning the wisdom of so many great leaders, but eventually where we have come, you know, today, that is not a very good juncture to be at. तो कुछ गलतियां हुई हैं. It's not right to name people, you know, कि एक ने की, दो ने की. It's a systemic flaw. We can still think about it and do a course correction, you know, if there is a national consensus on that, but at the moment it appears difficult. So, ठीक है friends, I'll end this lecture. It was good talking to you. I would have continued to talk, but I have another meeting, so we'll end this. Thank you, sir. Thank you. All the best Thank for you. your course. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Lecture, sir.